Bismillahirrahmanirrahim. Our today lecture is on alternative सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। alternative energy source. Okay. Our today lecture is on the alternative energy source, that is about gas hydrates. गैस हाइड्रेट्स का नेम ही आपको बता रहा होगा कि देर इज़ सम alternative energy source that we will be using for our today requirement for the methane gas, methane, ethane, propane and all other low hydrocarbon molecule gases. सो आपने देखा होगा कि आजकल एलएनजी, पहले आपने देखा होगा कि स्टार्ट में जो है मीथेन गैस का यूज़ होना शुरू हुआ, फिर एलएनजी भी कंप्रेस गैस आपके पास आना स्टार्ट होगी। तो जैसे जैसे जो रिज़र्व्स हैं वो डिप्लीशन की तरफ जा रहे हैं और आपके पास जो CO2 एमिशंस और आपके पास जो प्रोटोकॉल थे, पेरिस का प्रोटोकॉल हो गया, इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास, फॉसल फ्यूल्स भी डिप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की ज़रूरत तो होगी जो कि हमारी डिज़ायर्ड एनर्जी डिमांड को मीट करें। तो आल्दो टिल नाउ हम काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज को जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। इन द फाइनल कोर्स वी विल गो विद द गैस हाइड्रेट्स, बायोमास, wind energy, and if we will have one more lecture then we will also go for the T-sol software as well. Now let's check the what is the basic idea of the gas hydrates. आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Okay. Methane hydrates have fascinated the community for decades now. This stuff is cool. So methane hydrate is a combination of water molecules and methane, where the So you can see the gas hydrate is the combination of a water molecule and methane. Okay, it's not necessary that it will be methane. It depends upon the environmental pressure and temperature, because gas hydrates are always formed within the specific range of pressure and temperature. For example, अगर आप मीथेन की बात करते हैं तो ये बहुत हायर प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हमेशा फॉर्म होते हैं और इनकी एक रेंज होती है, ठीक है। अंडर दी सी बेड ओशंस या ऑन शोर ऑफ शोर अगर हम बात करें, अगर प्रेशर इस इक्विलिब्रियम स्टेट को मीट करेगा तो आपके पास मीथेन बनेगा, लेकिन मीथेन के साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। तो ये आइस की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, ये आइस नहीं है बल्कि ये बर्निंग आइस है, यानी कि आप इसे मीथेन गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मीथेन गैस क्या होती है आपको बताएगा? इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एनीवन? फ्यूल के तौर पे। यस, इट इज़ अल्टरनेटिव फ्यूल और ये ग्रीन फ्यूल है आपके पास। The methane sits inside a cage of these water molecules, and it forms at high pressure and low temperature. The methane hydrates that we commonly talk about are in the Arctic and the other very common places on continental margins. So as you go into the offshore, the combination of cold water and high pressure leads to a provenance of methane hydrates. Methane hydrates are a huge potential energy resource. There's an estimate that there is 7,000 trillion cubic feet of methane available in these hydrate reservoirs in the Gulf of Mexico alone. To give you a sense of what that means, that's 250 years worth of gas given our present consumption rates in the United States. So it's a tremendous potential supply. The problem is how to produce methane hydrates economically and environmentally. We don't Basically, the
Production of methane hydrates is natural, but how to extract them? We have self-dependent technology available, especially in the subcontinent. So if you will say, then within Pakistan we have discovered the reserves of gas hydrates, but this is not promising because जब इनको डिस्कवर किया गया था तो उस वक्त कुछ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि पाकिस्तान पे लगी, और आपने पीछे सुना था 1.5 साल पहले एक गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स पाकिस्तान में जो है वो डिस्कवर हुए हैं, वो बेसिकली गैस हाइड्रेट्स से। अब हम उनको शो ऑफ नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उसके लिए फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और ऑलरेडी पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अपने रिजर्व्स की वजह से जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो है अभी पहुंच चुके हैं, आपको पता है। और ऑब्वियसली इस पे काम करेंगे लोग पाकिस्तान में भी, क्या इंडिया में बहुत बड़े रिजर्व्स हैं अवेलेबल हैं जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और वर्क डाउन हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वी आर आल्सो पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अगर इंडिया में या अगर मैं और कंट्रीज आपको दिखाऊंगा वहाँ पे गैस रिजर्व्स अवेलेबल हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं है? OGDCL भी इस पे काम कर रहा है। सो ये भी एक एमर्जिंग फील्ड है, although it was not part of your course, but I have included it because I think that renewable energy resources कोर्स में ये पार्ट भी ऐड होना चाहिए। आपके पूरे जो कोर्स कंटेंट में जो मेरे पास मुझे प्रोवाइड किया गया था उसमें बहुत ही बेसिक लेवल पे जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल थे जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही करवा दिए हैं, लेकिन मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। इट विल बी पार्ट ऑफ योर पेपर एज वेल। मैं आपको बता दूंगा पेपर में भी किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी हम इसको जो है वो यूनिवर्सली हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे हाउ टू फॉर्म द गैस हाइड्रेट्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट देम, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज दैट वी हैव विद इन आवर कंट्री, और क्या रिसर्च फंड्स और जो आप कह लें कि क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम इस पर काम कर सकते हैं मज़ीद, इसको हम डिस्कस करेंगे। Understand how the material behavior of these rocks changes as we produce them. If you take that methane hydrate from depth and you don't control the pressure and the temperature, it's going to disassociate. The majority of it has just bubbled off into the atmosphere as you raise that rock. One of the most fascinating challenges of this project is to be able to drill and sample these hydrate deposits. We're drilling a hole in a mile of water, and then we're drilling a hole almost 1,000 meters below that. You've got to go down to that area. You've got to take what we call a core, a small cylindrical sample of the rock that has methane hydrate into it. And while you're down there, you need to seal that sample inside of a pressure vessel, like a pressure cooker, because that sample is under pressure and you have to safely store that sample for further analysis. Look, in the United States, natural gas is revolutionizing our energy supply. The more we have energy resources, more will be your energy security as well. जितने ज़्यादा आपके पास रिजर्व्स होंगे उतनी एनर्जी सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा होगी। CO2 इमिशंस ही हमारा एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल इशू है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस पे ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूरोप, सब कॉन्टिनेंट में भी रिसर्च हो रही है, और भी टर्की देख लें या और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। और इससे बहुत ज़्यादा मीन्स के जो वैसे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे मीथेन गैस के, उनसे हट के ये एक अलग से गैस हाइड्रेट का रिसोर्स है। और आप देखेंगे इस लेक्चर में आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सट्रैक्ट दीज गैस हाइड्रेट्स। बेसिकली दे एग्जिस्ट अंडर द हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। In that state they are in equilibrium form, but when we will disturb the pressure and temperature of the gas hydrate, then what will happen, that gas hydrate molecules that are usually in the crystalline form, they try to dissociate, तो dissociate होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो dissociate हम क्यों करते हैं? to extract the methane और गैस जो कि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब इसको dissociate करने के डिफरेंट आपके पास स्टेप्स हैं, जिसमें ज़्यादातर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डीप्रेशराइजेशन है कि हम इसको लो प्रेशर का अंडर प्रेशर कर देते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। उससे ये होता है कि जब डीप्रेशराइजेशन होती है तो प्रेशर कम होता है
वो गैस हाइड्रेट उस पर अनस्टेबल हो जाता है और जो उसने मीथेन गैस स्टोर की होती है उसको रिलीज़ कर देता है. इन द सेम वे द अनदर मेथड इज़ अबाउट द टेम्परेचर और थर्मल स्टिमुलेशन. उसमें हम ये कहते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं लेकिन हीट सप्लाई करते हैं यूजिंग दी हॉट वाटर सॉल्यूशन. उससे ये होता है कि आपका जो गैस हाइड्रेट का रिज़र्व है वो हीट को अब्जॉर्ब करता है एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि वो इक्विलिब्रियम में होता है एट लो टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है गैस हाइड्रेट अगेन डिसोसिएट होता है और गैस को रिलीज़ करता है और उसको हम बाद में स्टोर कर सकते हैं और यूज़फुल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. अनदर वे इज़ बाय दी CO2 सेक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस. वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम जो आपके पावर प्लांट्स अवेलेबल हैं, कोल पावर प्लांट्स हैं, फॉसल फ्यूल्स इसमें आप यूज़ कर रहे हैं, उनमें हम CO2 कैप्चरिंग का एक प्रोसेस करते हैं. CO2 को कैप्चर करने के बाद हम उनको गैस हाइड्रेट रिजर्व में एंटर करवाते हैं. तो ये बेसिकली केमिकल जो इंजीनियर्स होते हैं इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल का जो साइज़ होता है वो मीथेन गैस से डिफर करता है और वो ज़्यादा प्रेफरेबली वाटर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर सकता है. तो जब हम टेम्परेचर प्रेशर कर्व्स जो होती हैं गैस हाइड्रेट की इक्विलिब्रियम स्टेट में होती हैं उनको हम डिस्टर्ब करते हैं और CO2 गैस को एंटर करवाते हैं तो वो मीथेन गैस को रिलीज़ कर देता है और CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है. इन डैट वे एक तो हमारा फ़ायदा और होता है कि CO2 एमिशंस को हम कम कर रहे होते हैं और सेकंड हम जो है वो मीथेन गैस को रिलीज़ करवा के उसको स्टोर करवाना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. काइंड ऑफ अनदर प्रोसेस दैट वी यूज़ फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गैस हाइड्रेट्स इज़ लाइक द यूज़ ऑफ द केमिकल इनहिबिटर्स एज वेल, जिसमें हम मेथनॉल एक्सेट्रा को जो है वो प्रॉपर जो हमारे पास अवेलेबल जो हमारे पास मेथनॉल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हम कैटलिस्ट वगैरह को ऐड करते हैं और स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर का हम उसको इंसर्ट करवा देते हैं गैस हाइड्रेट रिजर्व में और उसकी जो मेम्ब्रेन लेयर है उसको हम इंसुलेट करते हैं ताकि हमारा जो इनहिबिटर सोल्यूशन है वो जस्ट हमारा जो है गैस हाइड्रेट में ही एंटर हो सके. तो वो जाके क्या करता है कि उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है गैस हाइड्रेट की जो कि पहले हाई प्रेशर लो टेम्परेचर थी, उस इक्विलिब्रियम कर्व को वो मज़ीद प्रोमोट कर देता है, शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड. मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा आगे आएगा. उसका फ़ायदा आपको क्या होता है? फ़ायदा आपको ये होता है कि आपने प्रेशर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम स्टेट जो है गैस हाइड्रेट की रिजर्व की जो है वो डिस्टर्ब कर दी है बाय द केमिकल इनहिबिटर और बाद में आप क्या कर सकते हैं इसको इजीली डिसोसिएट करके इसे जो है वो गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बाद में आप इसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर द एनर्जी रिसोर्सेज, फॉर हीटिंग एंड कूलिंग पर्पस, फॉर बर्निंग एज अ फ्यूल एज वेल और फॉर रेफ्रिजरेशन पर्पसेज एज वेल. और इसके अलावा वाटर डिसैलिनेशन भी आप इसे कर सकते हैं, जो खारा पानी होता है उसको जो है आप डिसैलिनेट कर सकते हैं. और भी काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेस हैं. सबसे ज़्यादा मेन जो यूज़ है मीथेन गैस का जो कि आपके घरों में आजकल आ रही है, हाउस होल्ड यूज़ में भी, कमर्शियली भी और हर लेवल पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं. हैव यू एनी क्वेश्चन? ओके. We're using more gas instead of coal. We're lowering CO2 emissions. And here's a resource where we know there's tremendous amounts of methane, of natural gas stored. And we want to explore the potential for that as a fuel of the future. So it is also a potential fuel of the future. आप में से होपफुली बहुत से लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए. आई वांट कि वो इस लेक्चर को बहुत गौर से सुने. इस तरह के जो मैं आपको अल्टरनेटिव रिसोर्सेज बता रहा होता हूँ ये OGTCL और अदर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए हॉट केक की तरह जो है वो डिस्कस हो रहे हैं वहाँ पे. आपको पता है कि फॉसल फ्यूल की डिप्रेशन के साथ उन्होंने इन चीज़ों पे बहुत हाई लेवल पे रिसर्च स्टार्ट की हुई है क्योंकि अगर वो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल जो है वो उस पर उनको काम करना होगा R&D डिपार्टमेंट को. तो OGTCL में भी इस पर काम हो रहा है. आप जब जाके इंटरव्यू में हायर लेवल की, इवन माई ब्रदर इज़ वर्किंग इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, नेम इज़ ENI और अभी उनका जो सेटअप है इस वक्त वो यूरोप में है. तो वो भी बता रहे थे कि इस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे. जब से फॉसल फ्यूल की डिप्रेशन स्टार्ट हुई है तो जितने भी ये जो इंडस्ट्रीज़ थे ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं टुवर्ड्स द रिन्यूएबल रिसोर्सेज.
तो आप लोगों को मैं जितना मैक्सिमम जो एमर्जिंग टॉपिक्स हैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस कोर्स में, और बाद में हम फाइनल में बहुत से टॉपिक्स को इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन बेसिकली ये आपके नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ आपको बताई जा रही हैं ताकि आपको फ्यूचर में पता हो, और ये लेक्चर आपका फाइनल में इंक्लूड मैं करूँगा, ठीक है। The University of Texas is taking the lead of actually sampling these potential hydrate reservoirs in the Gulf of Mexico. At the Jackson School and at UT as a whole, we're committed to making fundamental advances. And we're also excited when there's the potential for those advances to have societal impact. A better understanding of the methane hydrate resource has the potential to change a lot of lives down the road. Okay, so very beautiful explanation. So Azerbaijan आपको पता है लैंड ऑफ एनर्जी का ट्रेडमार्क है. Depths, bubbles arising from the ocean floor. So you can see clearly the bubbles that are arising from the ocean beds. So ये स्पेसिफिक डेप्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, 800 मीटर प्लस ही होती है ज़्यादातर डेप्थ इनकी. तो एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रेशर एनवायरनमेंट में भी जो है गैस हाइड्रेट जो है जनरेट होते हैं. The gas escaping from these so-called cold seeps is methane. Seep communities are sources of food. They provide refuge for many species, and they are markers of oil and gas reserves. The white substance also found here is methane ice or gas hydrate. This ice-like structure is formed when methane gas molecules crystallize with water molecules. So here you can see that we have a water molecule, and within water molecule we have a gas molecule. And mostly its structure is found to be crystalline. Now you will say how we have found out that the structure of gas hydrate is crystalline. As you people know that we have to perform the different crystallographic analysis techniques like scanning electron microscope, transmission electron microscope, and we also have a thermal analysis techniques like TGA, DSC, where we can find the melting and boiling point of the material and its crystalline and morphological states, what is the structure of a unit cell, what is the d-spacing, and either the structure will be polycrystalline or monocrystalline depending upon the thermal and heat conduction properties as well. So these are material properties are very important, and mostly at the BS level we do not introduce much this of techniques in depth, लेकिन इनको हम यूज़ करके ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी मटेरियल की कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, एंड ये सारी चीज़ें हम जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं. दैट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट. Under pressure and low temperatures. Estimates indicate that there are more hydrate resources than all known reserves of coal, natural gas and oil combined. So you can see that the reserves of gas hydrates are more as compared to the all of other fossil fuel reservoirs. So that's why the emerging hot topic is gas hydrates. The Azerbaijan. But problem is as we will go with the research where R&D department is working, how to easily extract these gas hydrates for the useful energy resource, and how to extract that methane gas or the required gas. जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होगी, एडवांस होगी, जैसे कि हाइड्रोजन गैस के बारे में आपने सुना था, अब तो हाइड्रोजन कार भी आपको पता है मार्केट में इन हो चुकी हैं, इसी तरह हाइब्रिड कार्स भी आ चुकी हैं. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होती है वो टाइम के साथ साथ जो है वो ऑन सरफेस होती है. तो ये जो आप देख रहे हैं, Azerbaijan National Academy of Sciences and other research institutions around the world are working towards a better understanding of these substances. With a piston corer, they remove gas hydrates from the bottom of the sea.
Special cold storage containers assure their stability during transport. This piece shows how the white hydrates and the greyish sediment cling together, therefore stabilising the ocean floor. The white crystals have received special attention because the gas stored in them may be used as an energy source in the future. Extraction, though, is complicated, and many questions will have to be answered before we can commercially exploit them. Hi, I'm Jeff Goldmere, GE's fuel guy. यू पीपल नो वेल कि कोई भी टेक्नोलॉजी इस वक्त कमर्शियली नहीं होती जब फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर जो है हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, फिर अप्लाइड रिसर्च होती है, और जब अप्लाइड रिसर्च में हमारे पास सक्सेस रेट ज़्यादा होता है फिर हम उसको कमर्शियली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में। हम देखेंगे कि मीथेन हाइड्रेट्स के एनर्जी सेगमेंट में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और इंडिया इस फील्ड में क्या कर रहा है, पर ये ज़रूरी क्यों है। इसका जवाब दुनिया भर में बढ़ती एनर्जी नीड्स में शामिल है। ह्यूमन स्पीसीज बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रही है। पेट्रोल एंड डीजल डिपॉजिटरीज पूरी दुनिया में डिप्लीट हो रही हैं और इनका यूज़ एनीवे अनसस्टेनेबल है। पेट्रोल और डीजल के अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कंबशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने से ग्लोबल वार्मिंग रैपिड हो चुका है, जिससे क्लाइमेट चेंज एक सीरियस प्रॉब्लम बनकर उभर रहा है। क्लास ये मैंने पेपर में भी क्वेश्चन दिया था, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन? जी कोई बता कौन सा वाला? ये क्लाइमेट चेंज का हीट वेव्स जो आ रही हैं आपके पास, क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन था सर। वो जो ऊपर Yes, sir. जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो वापस नहीं जा रही, वो अंदर ही एटमॉस्फेयर में रह रही हैं, जिसकी वजह से ये हीट वेव आ रही है। जी जी, ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन कॉज सर। ग्लोबल वार्मिंग। सो आपने उसमें बताना था कि ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली प्रोड्यूस कैसे हो रही है, और मैंने उसमें आपसे सोल्यूशन यस सर, आपने कैटालिटिक कन्वर्टर वाली गाड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल में लानी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लानी चाहिए। ओके ओके फाइन। सो अभी आप देख रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी के साथ आप सोल्यूशन बता सकते हैं, तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली सोचा करें कि आपको पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप कल आपसे हमने सोल्यूशन जो है वो प्रपोज करवाने हैं। मार्केट में भी आप जाएंगे आपसे सोल्यूशन प्रपोज करवाया जाएगा। आप अगर ये समझ रहे हैं कि कोई आपसे मार्केट में कमर्शियली गैस हाइड्रेट की डेफिनेशन पूछेगा, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि गैस हाइड्रेट के रिसोर्सेज पाकिस्तान में कहाँ पे हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि पाकिस्तान में जो गैस हाइड्रेट आ रहा है या आ सकता है, उसकी जो रिजर्व्स हैं वो कितनी अमाउंट में हो सकते हैं, और कौन कौन सा प्रोपोर्शन उसमें मीथेन गैस का ज़्यादा होगा, इथेन का, प्रोपेन का। सो ये तब तक पॉसिबल नहीं है, अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी लैब अवेलेबल नहीं है जिसमें इसकी प्रॉपर एक प्रोसेस होता है इसको डायग्नोज करने का कि कौन सा जो है गैस ज़्यादा जो है वो गैस हाइड्रेट में पाया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक प्रॉपर रिसर्च इक्विपमेंट है और फ़ॉरेन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इस पर काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी आएगी। आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो। तो फॉसिल फ्यूल्स और अनसस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी के केवल एनवायरनमेंट पर ही इम्पैक्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी स्टीकली नीचे जा रही है। इसका एक स्टार्क एग्जाम्पल 2019 में सामने आया था, जब यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज करीब 10 लाख स्पीसीज को एक्सटेंशन की तरफ लेकर जा रहा है। ये एक कंसर्निंग रिपोर्ट थी। ऐसे में ह्यूमंस को रियलाइज करना जरूरी है कि पॉल्यूशन और फ्यूल कंजम्पशंस पर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हो। साथ ही साथ फ्यूल मिक्स में नेचुरल गैस और ऐसे फ्यूल्स ऐड किए जाएं जिनका एनवायरनमेंट पर जीरो इम्पैक्ट हो। हालांकि जीरो इम्पैक्ट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे इम्पैक्ट मिनिमल किया जा सकता है। इसी सिलसिले में मीथेन हाइड्रेट्स एक बेटर प्रोस्पेक्ट लेकर सामने आया है। हालांकि मीथेन हाइड्रेट भी फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में ही शामिल है, पर एस्टिमेट्स के मुताबिक ये कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है जो आने वाले वक्त में बेटर ऑप्शन हो सकता है।
इससे नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जा सकती है और फॉसिल फ्यूल की तरह केवल मीथेन हाइड्रेट्स या इसमें से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर अलग से इस्तेमाल में लाई जा सकती है। दरअसल मीथेन हाइड्रेट्स को मीथेन आइस, हाइड्रोमीथेन, मीथेन क्लैथरेट, नेचुरल गैस हाइड्रेट और फायर आइस भी कहा जाता है। ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जो आइस की तरह दिखाई पड़ता है, पर इसमें भारी मात्रा में मीथेन ट्रैप्ड होती है। इंडिया और सारी दुनिया इस कंपाउंड पर फिलहाल रिसर्च और डेवलपमेंट फेज में है और कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन सामने नहीं आया है। आज हम इसी डायरेक्शन में समझेंगे कि क्यों मीथेन हाइड्रेट्स पर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले इस कंपाउंड के बारे में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। Through my online store alone, we've sold over $500,000 worth of spices. That's so crazy. दोस्तों, फायर आइस यानी मीथेन हाइड्रेट्स एक ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉसिल फ्यूल है। ये एक वाइट एनर्जी डेंस सब्सटेंस होता है जिसमें मीथेन ट्रैप्ड होती है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला CH4 और 4CH4 होता है। हालांकि कुछ कंपाउंड्स में मीथेन की जगह इथेन भी शामिल होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ और घट सकते हैं। इसे इजीली जलाया जा सकता है। ये हाइड्रेट्स दोस्तों रिलेटिवली शैलो सब सरफेस डेप्थ्स में बनते हैं, जहां लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट तो होता है पर प्रेशर हाई होता है। इसलिए इनके डिपॉजिट्स आउटर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, बेसिन्स और परमाफ्रॉस्ट रीजन्स में मिलते हैं। इस सब्सटेंस को एक बार नॉर्मल कंडीशंस में गर्म और डिप्रेशराइज करने पर हाइड्रेट का 1 सेंटीमीटर अमाउंट अप्रॉक्स 164 सेंटीमीटर रेगुलर नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर सकता है। इस गैस में दिस मीन्स कि अगर आपके पास 1 यूनिट वॉल्यूम आपके पास जो है गैस हाइड्रेट है तो आपको प्रोवाइड कर सकता है 164 यूनिट वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस। सो दैट्स व्हाई and this is the most promising solution of the alternative resource 80 to 99.9% तक मीथेन हो सकती है, जो कोल और ऑयल्स की तुलना में बहुत कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है। एस्टिमेट्स के मुताबिक नेचुरल गैस कोल के कंपैरिजन में केवल 60% कार्बन एमिशंस करती है और ऑयल की तुलना में 80%। दोस्तों, नेचुरल गैस हाइड्रेट्स तब से नोन है जब सर हम्फ्री डेविड ने इन्हें एक्सपेरिमेंटली 1810 में ऑब्जर्व किया। हालांकि इनका ऑपरेशनल यूज नहीं हो पाया क्योंकि मीथेन पाइपलाइंस में ट्रांसपोर्ट होने में दिक्कत देती है। ये दिक्कत जनरल पानी के साथ रिएक्शन करने पर पैदा होती है। ये जो बात कर रहे हैं बेसिकली ये प्रॉब्लम हर साल OJDCL में भी आता है पाइपलाइंस में। मेरे कुलीग हैं बता रहे थे कि वो जो स्पेशली जो मीथेन गैस होती है, ये जब इसको प्रेशराइज फॉर्म में इसको फ्लो अप करवाते हैं विद इन द पाइप्स, तो उससे ये होता है कि क्योंकि ऑलरेडी अंडर प्रेशर जो है वो अंडर पाइप प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है और जैसे टेम्परेचर भी लो होता है तो गैस हाइड्रेट्स उसमें भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाइपलाइन में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जो पाइपलाइंस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और उनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा और इश्यूज़ जो है विथस्टैंड हो जाते हैं। तो नॉर्मली जब उन्होंने प्लांट को शट डाउन करना होता है तो उसका प्रोसेस फिर ये होता है कि स्पेशल जो केमिकल होते हैं, केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं, स्पेशली जो मेथनॉल या एथिलाइन ग्लिकोल, ये इसको एंटर करवाते हैं विद इन दी पाइपलाइन। उससे ये होता है कि वो उसका एक्विलिब्रियम फेस जो है वो शिफ्ट हो जाता है और अगर ज़्यादा देर के लिए प्लांट में बंद रहना है तो उसके अंदर आइस लाइक ब्लॉकेज वो नहीं होती विद इन दी पाइप। उनके सर्टेन केमिकल रिएक्शन और सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर में वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्स मीथेन मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर हेक्सागोनिकल क्रिस्टल्स की तरह होता है जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। 1960s में रशिया ने मीथेन हाइड्रेट्स को पाया और 10 से 15 सालों तक रिसर्च करता रहा। हालांकि फिर इस पर ध्यान कंपैरेटिवली कम हो गया। करंट सिनेरियो की बात करें तो चाइना, जापान और इंडिया रिसेंट पायनियर्स में शामिल हैं। इंडिया ने अपना नेशनल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम 2006 में शुरू किया। So you can see here that India, China and Japan are the top researchers in this field according to this guy, and you can also understand that we are also from the subcontinent और जो रिजर्व्स इंडिया में हैं मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान में भी ज़रूर होंगे क्योंकि हमारी जो वाटर बाउंड्री है वो सेम है। लेकिन उन्होंने 2006 में इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया, इस पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उनका जो था वो काम करना शुरू हो गया था। लेकिन हमारे पास तब से लेकर अब तक जो है वो कोई
ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही हम रिसर्च फील्ड में इतना ज़्यादा ग्रो अप कर रहे हैं। सो लेट्स ऑब्जर्व, आगे चलते हैं। था जबकि इस आइडिया के लिए शुरुआत 1997 में ही हो चुकी थी। चाइना ने 2007 से अब तक करीब 4 टेस्ट कर चुका है और जापान 2013 में ऐसा पहला देश बना जिसने डीप वाटर हाइड्रेट से सक्सेसफुली गैस प्रोड्यूस की। मार्च 19, 2013 को जापान ऑयल, गैस एंड मेटल्स नेशनल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया कि उसने ईस्टर्न नानकाई ट्रॉ में 1,20,000 सेंटीमीटर मीथेन गैस प्रोड्यूस की है। हालांकि ट्रायल 6 दिन चला और कुएं के अंदर रेत के भर जाने से ऑपरेशन टर्मिनेट कर दिया गया। जापान ने दूसरा प्रोडक्शन ट्रायल 2017 में शुरू किया है। इंडिया ने 2006 में पहला एक्सपीडिशन शुरू किया था और दूसरा एक्सपीडिशन 2015 में कंप्लीट किया गया। चलिए अब हम इंडिया में मीथेन हाइड्रेट्स के प्रोस्पेक्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, नेचुरल गैस और मीथेन हाइड्रेट सेगमेंट में इंडिया करेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में है। मीथेन हाइड्रेट्स के ग्लोबल डिपॉजिट्स पर नंबर्स वेरी करते हैं, पर एस्टिमेट्स के मुताबिक ग्लोबल रिजर्व्स 2800 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर से 8 बिलियन ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस तक हो सकता है। इसमें से कुछ रिजर्व्स इंडिया के पास भी मौजूद है। अंडर नेशनल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम यानी NGHP, इंडिया ने 2006 में एक्सपीडिशन 01 कैरी आउट किया था, जिससे ये पाया गया कि कृष्णा गोदावरी, महानंदी और अंडमान बेसिन्स में सिग्निफिकेंट गैस हाइड्रेट्स मौजूद हैं। इसके बाद 2015 में एक्सपीडिशन 02 किया गया और कृष्णा गोदावरी बेसिन और महानंदी बेसिन रीजन में 25 साइट्स पर 42 वेल्स यानी कुएं खोदे गए ताकि इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल सकें। NGHP एक्सपीडिशन 01 की बात करें तो ये इस तरह डिजाइन था जिसमें गैस हाइड्रेट्स के इंडियन पेनिनसुला एंड अंडमान कन्वर्जेंट मार्जिन में स्पेशियल और टेम्पररी ऑकरेंसेस को स्टडी करना था। इसमें गैस हाइड्रेट्स के इन दोनों डाइवर्स सेटिंग में ऑकरेंस की जियोलॉजिक और जियोकेमिकल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना था। NGHP एक्सपीडिशन 01 का प्राइमरी गोल था कि वो साइंटिफिक ओशन ड्रिलिंग, कोरिंग, लॉजिंग और एनालिटिकल एक्टिविटीज कंडक्ट करें और गैस हाइड्रेट्स के पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्स होने के लॉन्ग टर्म गोल को देखते हुए रीजन, कॉन्टेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करें। ये भी देखना शामिल था कि इसका यूजेज कॉस्ट इफेक्टिव और सेफ हो। इस एक्सपीडिशन में जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल डेटा स्टडी करने के लिए 4 रीजन्स में 10 साइट्स डिसाइड की गई हैं, जो अरेबियन सी में केरला कोंकण बेसिन, वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कृष्णा गोदावरी बेसिन और ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ में महानंदी बेसिन और अनएक्सप्लोर्ड अंडमान आइलैंड शामिल थे। ये एक्सपीडिशन अप्रैल 28, 2006 से अगस्त 19, 2006 तक चला। इस प्रोग्राम में गैस हाइड्रेट का नेचर में फॉर्मेशन, सोर्सेस से रिजर्वायर तक ट्रांसपोर्ट करने की प्रोसेस, मैरीन सेडिमेंट्स में गैस का डिस्ट्रीब्यूशन और नेचर एक्सेट्रा एनालाइज करना एक्सपेक्टेड था। इसके बाद NGHP में ही एक्सपीडिशन 02 मार्च 3, 2015 से जुलाई 28, 2015 तक कंडक्ट किया गया। इस एक्सपीडिशन का प्राइमरी मोटिव था हाईली सैचुरेटेड गैस हाइड्रेट्स के सैंड रिजर्वायर्स में ऑकरेंसेस को एक्सप्लोर करना और डिस्कवर करना, जिसमें फ्यूचर प्रोडक्शन टेस्टिंग की जा सके। ये मेनली कृष्णा गोदावरी बेसिन में कंडक्ट किया गया था। दोस्तों, ये एक्सपीडिशंस और प्रोग्राम्स एक कोलैबोरेटिव एक्सप्लोरेशन रहा है। इसमें इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS और जापान ड्रिलिंग कंपनी यानी JDC और जापान एजेंसी फॉर मैरीन अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल रहे हैं। 2014 में इन्हीं एजेंसीज ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इंडिया में 1894 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स एक्सपेक्टेड रिजर्व्स हैं। 2015 में सेकेंड एक्सपीडिशन ने ये कंफर्म किया कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में लार्ज और हाईली सैचुरेटेड गैस हाइड्रेट्स का डिपॉजिट मौजूद है, लेकिन इन रिजर्व्स का इंडिया कैसे यूज करेगा। 2018 में तब के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि इंडिया के पास लगभग 300 साल तक सर्व करने लायक हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स मौजूद हैं। दोस्तों, एस्टिमेट्स ईयर्स की गिनती तो नहीं बताते हैं, पर USGS के लेटेस्ट एस्टिमेट्स के मुताबिक अमेरिका के बाद दूसरा लार्जेस्ट गैस हाइड्रेट रिजर्व्स इंडिया के पास है। केवल कृष्णा गोदावरी, कावेरी और केरला बेसिन सी 100 to 130 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रिजर्व्स ऑफ गैस एस्टिमेट में रखते हैं। ये डिस्कशंस 2018 में NGHP के थर्ड स्टेज यानी थर्ड एक्सपीडिशन के प्लान्स को डिस्कस करने के वक्त चर्चा में आए थे। NGHP के एम्बिशियस प्रोग्राम के थर्ड स्टेज को गवर्नमेंट ने हामी दे दी थी और इसके अंडर कृष्णा गोदावरी में डीप वाटर पायलट टेस्टिंग की जानी थी। हम NGHP 3 के लिए फर्म हैं।
KG डीप वाटर में पायलट टेस्टिंग प्लांट है और हमें नवी मुंबई के पनवेल में डेडिकेटेड गैस हाइड्रेट रिसर्च सेंटर भी स्टैब्लिश किया है। ONGC के चेयरमैन शशि शंकर ने मीडिया से कहा था। इंडियन मीथेन हाइड्रेट्स रिजर्व की खासियत ये है कि इनका ऑर्गेनिक बायोजेनिक है। बायोजेनिक का मतलब कि पानी में ट्रैप्ड मीथेन उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने बनाई है जो मीथेन प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। इन स्टडीज और एक्सप्लोरेशन से और डेटा सामने आने वाला है जिसके चलते क्लियर प्रोस्पेक्ट्स समझे जा सकेंगे। इंडिया इस वक्त विगरस रिसर्च प्रोग्राम्स और मीथेन हाइड्रेट्स में प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रहा है। दोस्तों, इस नेचुरल रिसोर्सेज का पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एक चीफ फैक्टर ये है कि मीथेन हाइड्रेट की ग्रोथ ग्लोबल मार्केट में लार्ज स्केल कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएगी। इस नेचुरल रिसोर्स के कई पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ नेचुरल गैस सेपरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड डिस्पोजल एंड डीसैलिनेशन, जो इसे ग्लोबली एनर्जी का फ्यूचर बनाते हैं। गैस ट्रांसपोर्टेशन में फिलहाल बड़ी दिक्कतें आती हैं, पर हाइड्रेट्स गैस ट्रांसपोर्टेशन में वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मीथेन हाइड्रेट्स टेक का डेवलपमेंट नेचुरल गैस के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। पर सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में एक क्लीन फ्यूल होगा? मीथेन एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो रिसेंट ईयर्स में ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस एमिशन में सिग्निफिकेंट परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन मीथेन हाइड्रेट्स मीथेन को अर्थ सरफेस में ट्रैप करके रखती है, जिससे इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम है। यही कारण है कि हाइड्रेट्स ग्लोबली क्लीन हाइड्रोकार्बन एनर्जी के मेजर सोर्स की तरह अटेंशन गेन कर रहे हैं। लेकिन कंसर्न्स खत्म नहीं होते हैं। सी टेम्परेचर के राइज होने से मीथेन हाइड्रेट्स मेल्ट करना शुरू हो सकते हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में मीथेन अनलीश तरीके से रिलीज हो सकती है। इसके बारे में साइंटिफिक स्टडीज भी सजेस्ट करती हैं कि आर्कटिक में ओशन और सॉइल से मीथेन लीक हो रही है। इससे चिंता बढ़ रही है। ये एक कारण है कि ग्लोबल मीथेन हाइड्रेट मार्केट इनहिबिटरी तरीके से बढ़ती है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये गैस दोनों तरीके से ह्यूमन काइंड के सामने आ सकती है, सेवियर की तरह भी और डर्टी फ्यूल की तरह भी। दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस तो कई सारे हैं ही। इसका लास्टिंग और सस्टेनेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक यदि रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए गए एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, एनवायरनमेंट पर वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशंस दिखेंगे। इसका एक तरीका है कि आइस में ट्रैप्ड मीथेन को एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली CO2 से रिप्लेस कर दिया जाए। ऐसे में मोर डेंजरस ग्रीन हाउस गैस स्टोर की जा सकेंगी। ये बेसिकली CO2 सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। उसमें ये प्रोसेस होता है कि जो आपके पावर प्लांट्स की CO2 गैस है उसको कैप्चर हम करते हैं। कैप्चरिंग टेक्निक से CO2 कैप्चरिंग पे MS भी हो रहे हैं, PhD भी हो रही हैं। तो ये भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो CO2 को कैप्चरिंग करवाता है और उसको बेसिकली हम इंजेक्ट करवा देते हैं गैस हाइड्रेट रिजर्व्स में। तो वो ये करता है मीथेन गैस को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देगा और CO2 गैस जो है उसमें कैप्चर हो जाएगी। सो इस तरह से जो है वो हम एक तो CO2 गैस के जो मिशंस हैं उसको कम कर सकते हैं और सेकंड हमारे जो एनर्जी रिजर्वर्स का जो पोटेंशियल है उससे जो हम गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम एज अ यूजफुल एनर्जी फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, मीथेन हाइड्रेट्स भले ही कोल और ऑयल से क्लीनर हों, ये एक हाइड्रोकार्बन ही है जो जलने पर CO2 ही रिलीज करेंगे। इससे डाउट पैदा होता है कि क्या ये सच में एक क्लीन फ्यूल है। ये एक लॉन्ग शॉट है। इसके प्रोज एंड कॉन्स होने के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी सामने आते हैं। ह्यूज रिजर्व्स होने के बाद भी फ्यूचर में प्रोडक्शन वॉल्यूम्स को लेकर स्पेकुलेटिव अप्रोच ज़्यादा नजर आती है। हाइड्रेट से मीथेन प्रोडक्शन कमर्शियल स्केल पर सेफ तरीके से फिलहाल नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाइड्रेट रिजर्व का केवल एक छोटा फ्रैक्शन ही कमर्शियली एक्सप्लॉइटेबल है, क्योंकि मोस्टली रिजर्व्स एक्सट्रीम वाटर प्रेशर और लो टेम्परेचर में मौजूद है, जिससे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। मान लीजिए कि एक्सट्रैक्शन पॉसिबल बना भी लिया जाए, तब भी प्रोसेस सीबेड को डिस्टेबलाइज कर सकती है, जिससे ओशनिक लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं और हार्मफुल मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में फैल सकती है। फिलहाल सेफ एक्सट्रैक्शन में लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज हिंड्रेंस का काम कर रही है। हालांकि पैसिफिक और साउथ चाइना सी में जापान और चाइना ने रिस्पेक्टिवली गैस हाइड्रेट्स 2017 में एक्सट्रैक्ट किए हैं। इस तरह से इंडिया फिलहाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में है और यदि ये वायबल प्रूव होती है तो इंडिया के एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी गोल्स को एक बिग पुश मिलेगा। यूएस और जापान के अलावा इंडिया भी कनाडा के साथ एक एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है जो हाइड्रेट एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में इंडिया की हेल्प करेगा।
जापान 2027 तक अपने ऑफशोर हाइड्रेट से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना चाहता है और इंडिया और यूएस के साथ 2018 से कोलैबोरेट कर रहा है। अभी इंडिया के लिए एक लंबा रास्ता बाकी है। गैस हाइड्रेट रिसोर्स पोटेंशियल, रिजर्वायर डिलिनेशन, सी फ्लोर के लिए जियो मैकेनिकल मॉडलिंग, वेल बोर स्टेबिलिटी एंड टेस्टिंग के लिए पायलट प्रोडक्शन में फाइनलाइजेशन ऑफ साइट्स जैसे मुद्दों पर एक्सटेंसिव स्टडीज करना बाकी है। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया गया, इंडिया अभी अपने रिसर्च की अर्ली स्टेजेस में है, पर हाँ, इस बात की श्योरिटी है कि इंडिया के पास नेचुरल गैस के बहुत सारे रिजर्व्स हैं। पर इस मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि इंडिया के नेचुरल गैस रिजर्वायर्स इंडिया को एनर्जी सेक्टर में एक मेजर प्लेयर बनाने में हेल्प करेंगे? आप लोगों ने काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा कि गैस हाइड्रेट्स हैं क्या और इनको जो है वो आप किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स कहाँ किस तरह के हैं, ये आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टडी कर लिया है। एनी क्वेश्चन? सर ये एक्सट्रैक्ट का तो नहीं समझ आया, बाकी तो समझ आया। वो मैं सारा बताऊंगा। अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी हम देखेंगे, इसकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है वो भी देखेंगे, वो मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा। सो बेसिकली आपको वीडियोस दिखाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि ताकि आपको ये आइडिया हो कि पाकिस्तान में अगर एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही और जो प्री अर्ली स्टेजेस में है, तो उसको हम किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे भी। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, लेकिन इंडिया में अगर अरेबियन सी और इधर उधर से वो सारा कुछ ये कर रहे हैं, वो इतना सक्सेसफुल उन्होंने ये स्टार्ट किया, एक्सट्रैक्शन भी स्टार्ट कर दी है। तो बेसिकली ये जो टेस्ट वगैरह की बात कर रहे थे, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा अभी। इनके पास वो क्या इक्विपमेंट्स होते हैं और हमारे पास कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम गैस हाइड्रेट जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी टेस्टिंग करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये कितने टाइम में बना था और किस टेम्परेचर और प्रेशर पे ये स्टेबल रहा है, और इससे हमें ये भी आइडिया हो सकता है कि कितने रिजर्व्स अवेलेबल हो सकते हैं किसी साइट पे। और सारे मेथड्स हम आज आपको दिखाएंगे। ओके, अभी आप लोग 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें, फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, we have looked upon how much is the universal importance of the gas hydrates. Now we will look for the theoretical importance. For example, what are the gas hydrates, what we know about the structure of the gas hydrate, its composition and its other available parameters, how to extract gas hydrates, and what are the laboratory scale equipments that are used for the research of a gas hydrates. And at the end of a lecture we will see out advantages, disadvantages and so on. Any of my student please tell me, gas hydrate is a renewable energy resource or a conventional energy resource? Anyone? Conventional. Yes, very good. It is conventional because you know it is a hydrocarbon, and at the end of a combustion again we will have a CO2, but it is a conventional gas and we can use it as a alternative fuel. So we will start with the introduction of gas hydrates. We have seen out these videos in detail. Objectives are to describe what are the gas hydrates and how and where they are formed, to explain the possible ways in which hydrates could affect our environment, to recognize the potential of a gas hydrates, to measure the methods by which hydrates can simulate in the laboratory. So laboratories के जो यूनिट्स हैं उस पर किस तरह से काम हो रहा है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ये सारे के सारे हम चेक करेंगे. So these are our objectives. Look about the executive summary. Gas hydrates have received considerable attention due to their important role in flow assurance for the oil and gas industry
their intensive natural occurrence on Earth, and their significant applications in sustainable technologies including gas and energy storage and gas separation and water desalination and so on. So these are the uses. They can be used for the energy storage, gas separation, that can be later used for burning as a fossil fuel, just like a fossil fuels, and it can also be used for the water desalination as well. So actually what we have, you see we have reservoirs on Earth, and this is our nature, and you can see the properties of the gas hydrates, and they can be used for the gas storage, gas separation. It is also a sustainable technology. We can use it for desalination, CO2 capturing, cold energy storage as well. Okay, so look here, the flow chart. This is our power plant. At the out of power plant we will have a CO2, and we will capture CO2, that is a flue gas, and that flue gas will be captured and it will be act as an inhibitor of a gas hydrate, and CO2 input to the gas hydrate will result in the release of CH4 molecule, because gas hydrate molecule will dissociate, and that CH4 can again be used for the burning as a fuel, as a burner fuel within the power plants. So this is the complete cycle, and you can see we have a clean and sustainable energy environment at the end of the process. Any question? Any question? No, sir. Okay. ये साइकिल समझ आया आप सबको? Yes. Okay. So coal-fired power plants and burning of fossil fuel result in the release of CO2 and other flue gases. What we want is to capture the CO2 gas, and that will be basically the input of a gas hydrate reservoir, and as an inhibitor it will replace the molecule of methane, and that methane gas will be released as a result of the dissociation of a gas hydrate, and it can be later used for the gas fired power plants, and it will give us the energy. So these are the some books that are advised for the students who are interested for the research on the gas hydrates. They can study these books, and I will be following the this one. This book is very interesting. I have put in the data from the it is random data, although it is selected from the major resources that are authentic as well, but we have also followed this book for the gas hydrates. Natural gas hydrates are crystalline compounds that form ice-like solid natural gases, structure of gases. For example, usually methane, ethane, propane, and lower order hydrocarbons and water. तो बेसिकली इसमें गैस होगी और वाटर होगी. गैस में क्या क्या हो सकता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और लोअर हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं. नेचुरल गैस हाइड्रेट्स आर फाउंड इन लो टेम्परेचर about 2 to 18 degrees C. So you can see how much lower is the temperature, only 2 to 18 degrees C, and how much higher is the temperature pressure, 3 to 15 megapascal. So this range of megapascal range of pressure, too much high pressure. So अगर ये environment में conditions produce करेंगे तो गैस हाइड्रेट फॉर्म करने के chances हैं हमारे पास. These conditions occur in near surface deep water marine sediments. Water is as cold as 0 to 4 degrees C. You people know well. And in terrestrial permafrost areas that are widely distributed around the world. Natural gas hydrates were first documented by Sir Humphrey Davy. 1811 में इन्होंने डिस्कवर किया था क्लोरीन हाइड्रेट को, और
इस रिसर्च की बेस पे लेटर ऑन गैस हाइड्रेट पे काम करना लोगों ने शुरू कर दिया और आज ये फील्ड मैच्योर हो चुकी है. Davis' independent discovery of chlorine hydrate is generally credited as the first observance. In north and south polar regions, strata of the earth remain frozen even in summer. These strata are known as permafrost. Permafrost is any ground that remains completely frozen at 0 degrees C or colder for at least 2 years straight. So, what are the essentials for the hydrate formation? Among the elements, we need water and gas, and among the environmental conditions, we need high pressure and low temperature. So, you can see this is the cage-like structure where we have a water molecule cage, and inside the water molecule, gas is entrapped in the green color. So, this green color is basically showing the gas molecule, and this cage is basically showing you the water. And similarly, we need high pressure and low temperature as well. So you can see how gas is entrapped inside the water molecule. For the formation of gas hydrate, that is the crystalline like structure. A piece of gas hydrate that exactly looks like a piece of ice is highly inflammable. It keeps on burning until there is nothing left but water. And that is why gas hydrates are often called methane hydrates. It is also phrased as fiery ice or ice that burns. Why gas hydrates are important? It is because 1 meter cube of methane hydrate will be giving us 170 meter cube of methane gas and 0.8 meter cube of water. That means among the 1 methane hydrate unit volume, we will have a 170 numbers of methane gas. So within 1 unit cell of a methane hydrate, you will have 170 molecules of methane gas and 0.8 molecules of water. As gas hydrates are formed with methane, therefore they can be an alternative energy resource in future. Under normal temperature and pressure, that amount of methane gas can be contained in gas hydrate is equivalent to about 170 times the volume of the gas hydrate. So we can store 170 times of the gas within only 1 unit volume of a methane hydrate molecule. So such a huge amount of a gas stored within a unit volume of hydrate describe the importance of this technology. We can also say that 1 volume of gas hydrate release 170 volume of methane and 0.8 volume of water at standard temperature and pressure. Why standard temperature and pressure? Because only at that condition it will be going to dissociate and giving us the required gas that can be later used for the energy resource. This is introduction and background. Among the gas hydrates, we can see that from 1970 to 2010, the comparison of conventional gas reserves and hydrate gas reserves. This is the estimated amount provided in the scattered chart. Currently, natural gas hydrate reserves are believed to be in order of 3 into 10 raised to power 15 meter cube. That is about equal to 10 into 10 power 12 equivalent of the oil, which is approximately twice the world's known supply of fossil fuels like coal, oil and natural gas. So इसका जो importance है और availability है वो twice है as compared to other available fossil fuels like coal, oil, natural gas. और इसकी capacity कितनी है 3 into 10 raised to power 15 meter cube. Hydrate structure and hydrodynamics. On the x-axis you can see temperature and on the y-axis you can see pressure, and this is the equilibrium boundary of gas hydrate. On this blue line is showing the
distribution of the transient state or no hydrate state from the hydrate state. On the left side of the blue line or equilibrium state, we will see that gas hydrate molecule is stable, and on the right side it will dissociate and we will have no hydrate state of that substance and it will dissociate. So अब हम अगर डिसोसिएट करना चाहते हैं, हमने हाइड्रेट रिकवर कर लिया है और हम चाहते हैं कि हम उसे गैस को स्टार्ट करें, तो डैट मीन्स कि हमें इस इक्विलिब्रियम लाइन से राइट साइड पे आना पड़ेगा। तो उसके दो तरीके हैं कि डिसोसिएट करने के लिए मॉलिक्यूल को, कौन कौन से दो तरीके हैं आपके ख्याल में? एनीवन? जी, ये स्टेबल जोन है आपका जी, और ये अनस्टेबल जोन है जी, बताएं। सर उसका प्रेशर और टेम्परेचर है उसको अनस्टेबल जोन में ले जाएं। अनस्टेबल जोन में ले जाएं तो प्रेशर को कम करना होगा या ज़्यादा करना होगा? सर अगर प्रेशर हाँ सर अकॉर्डिंगली डील करना होगा ना। अगर टेम्परेचर आपने ज़्यादा रखा हुआ है तो प्रेशर, मतलब आपने सिर्फ राइट साइड पे रहना है। जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेम्परेचर फिक्स कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज टेम्परेचर। अब आप मुझे इसके अकॉर्डिंगली बताएं। प्रेशर लो रखना होगा जी। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि इस टेम्परेचर पे अगर इतना प्रेशर मैं लाऊंगा तो आपका गैस हाइड्रेट स्टेबल होगा, तो मुझे इससे अबव रहना है, तो गैस हाइड्रेट क्या होगा? स्टेबल होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिसोसिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे जो प्रेशर है वो इससे बिलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो तब ये अनस्टेबल होगा, डिसोसिएट होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं डीप्रेशराइजेशन। क्या कहते हैं? डीप्रेशराइजेशन, ठीक है? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस स्टेट में मैंने क्या किया था कि प्रेशर को मैंने जो है वो डीप्रेशराइज किया और टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट रखा था। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी, उसमें मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये प्रेशर है हमारा, ठीक है? नाउ इफ़ यू वांट कि आपका गैस हाइड्रेट अनस्टेबल हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? जी, टेम्परेचर इंक्रीज करवाना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करवाना पड़ेगा। एक्सीलेंट। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होने से आपका गैस हाइड्रेट अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं, क्या नाम है इसका, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं इसे हम। और जो थर्ड प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, गैस हाइड्रेट में से गैस को रिकवर करने के लिए, उसमें बेटा जी हम ये करते हैं कि ये आपकी जो ब्लू लाइन है बेसिकली, ये आपके गैस हाइड्रेट की स्टेबिलिटी बाउंड्री लाइन है। हम कुछ ऐसे केमिकल इनहिबिटर्स लेके आते हैं लाइक इथाइलिन ग्लिकोल, मिथानॉल, कि ये वाली जो इक्विलिब्रियम लाइन है ये हम शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स दी लेफ़्ट साइड। इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा कि अगर एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और हमने इक्विलिब्रियम स्टेट को अबव शिफ्ट कर दिया है, तो अब इस स्टेट पे आपका जो गैस हाइड्रेट होगा वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? तो ये तीन ही तरीके हैं इसको स्टार्ट करने के। और फोर्थ वन जो है वो CO2 सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। CO2 कैप्चरिंग करके हम लेके आते हैं, और जबकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो CO2 मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनक्लोज कर सकता है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू दी मीथेन गैस मॉलिक्यूल। So what are the necessary conditions? Resistance of water or ice, stability, sized gas, liquid molecules. ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। Suitable temperature and pressure conditions are very important. Temperature and pressure condition is a function of gas, liquid and water composition. So actually ये जो गैस हाइड्रेट के लेबॉर्ट्री स्केल इक्विपमेंट होते हैं उसमें यही रिसर्च हो रही होती है कि किस प्रेशर, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कर्व पे कौन सा गैस हाइड्रेट स्टेबल है और कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशंस हैं जिससे वो अफेक्ट किया जा सकता है, और हमारी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उसे मैच्योर कर सकते हैं।
तो जब भी कोई गैस हाइड्रेट किसी पोजीशन से डिस्कवर होता है तो गैस लेबॉर्ट्री स्केल पे ये टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, यही पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए। अगर हम गैस हाइड्रेट के स्ट्रक्चर की फॉर्म में बात करें तो ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम बोलते हैं S1, जो इसका सेकंड स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं S2, और थर्ड जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं SH, स्ट्रक्चर SH। सो स्ट्रक्चर 1 में क्या है, बेसिकली आपके पास ये स्ट्रक्चर 1 है आपके पास, और इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर 1 में आपके पास ये क्लियरली मेंशन है, इट इज़ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्मॉल स्फेरिकल कैविटीज़। इसमें 2 स्मॉल स्फेरिकल कैविटीज़ होंगी विद 12 पेंटागोनल फेसेस। सो 12 पेंटागोनल फेसेस भी इसमें आपको मिलेंगे, फॉलोड बाय 2 हेक्सागोनल फेसेस। ये देखें ये वाले, और 12 आप क्या कहेंगे, पेंटागोनल फेसेस। तो इन फेसेस के नेम पे स्ट्रक्चर को हमने डिफ़ाइन किया है कि अगर इतनी कैविटीज़ होंगी और इतने पेंटागोन फेस होंगे और इतने हेक्सागोन फेस होंगे तो ये S1 स्ट्रक्चर होगा। इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इन स्मॉल कैविटीज़। तो ये हमारा क्या होगा जी, S1 स्ट्रक्चर। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, 46 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। और गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं इसमें S1 स्ट्रक्चर में, मीथेन भी हो सकता है, ईथेन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। ओके, अब हम S2 स्ट्रक्चर की बात करते हैं। S2 स्ट्रक्चर में आपके पास जो है वो 16 क्या होंगे, स्फेरिकल कैविटीज़ होंगी, जिसमें 4 हेक्सागोन फेसेस होंगे और 12 पेंटागोन फेसेस होंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर 136 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और गैस मॉलिक्यूल्स जो गैस के होंगे वो प्रोपेन होगा, आइसोब्यूटेन होगा एंड सो ऑन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, S2, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 136 वाटर मॉलिक्यूल्स। इट कंसिस्ट ऑफ 16 स्मॉल कैविटीज़ with 12 pentagonal faces followed by 8 large cavities with 12 pentagonal and hexagonal 4 walls। स्ट्रक्चर H की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर H में ये है कि आपके पास 2 जो है वो स्मॉल स्फेरिकल कैविटीज़ होंगी, और अगेन इट डज़ नॉट फॉर्म नेचुरली। तो ये नेचुरली अकर नहीं करता। नॉर्मली इन ऑयल इंडस्ट्री 99% हाइड्रेट्स आर ऑफ S2 स्ट्रक्चर। सो ज़्यादातर ये S2 स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं आपके ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, एंड वेरी स्मॉल ऑफ देम आर इन S1 फॉर्म। और अगर हम देखें SH स्टेट में हमारे पास 34 वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और सिमिलरली हम इसके फेसेस भी बता सकते हैं जिस तरह पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसमें आपके पास अगर गेस्ट गैसेस हैं स्ट्रक्चर H में तो वो कौन कौन सी होगी, मीथेन, न्यू हेक्सेन, मीथेन प्लस साइक्लोहेप्टेन एंड सो ऑन। ये आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ गैस हाइड्रेट्स। Crystal structure of gas hydrate varies by environment and types of gases involved. Almost all natural gas hydrates have either type 1 or type 2 structure. So आप इसमें देख रहे हैं कि type 1 और type 2 structure की क्या importance है। Natural gas hydrate contains not only methane but similar gases such as ethane, propane, etc. Depending on the mixture of gases present, gas hydrate may exhibit type 1 structure, type 2 structure, or a mixture of type 1 and type 2 and type X structure. A hydrate that contains propane as well as methane will have a type 2 crystal structure. So you can see large molecule size gases like propane and small molecule gases like methane, ethane and CO2. So CO2 and methane जो है वो S1 structure में exist करता है,
जबकि जो प्रोपेन है आपका वो S2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। Now how we can perform the characterization of the gas hydrates? Characterization of gas hydrates is possible through X-ray diffraction। ये मटेरियल साइंसेज में आप लोगों ने स्टडी किया होगा। कैरेक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन से, इसे हम XRD एनालिसिस भी बोलते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR एंड रैमान स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स भी अवेलेबल हैं। S2 gas hydrates hold slightly more gas than S1 gas hydrate। S2 gas hydrates are more stable than pure gas hydrate with a S1 structure। For example, pure gas hydrate requires a temperature of -800 degrees C to remain stable at normal atmospheric pressure, while gas hydrate that is not pure, it only requires -200 degrees centigrade for stability, and it will be containing propane and it will remain stable up to -200 degrees C। सो आप देख रहे हैं कि प्योर गैस हाइड्रेट को कितना डिफ़िकल्ट है स्टेबल रखना। -800 डिग्री सी चाहिए टेम्परेचर आपको, जबकि ऑन द अदर हैंड आप -200 डिग्री सी पे प्रोपेन को भी स्टेबल करवा सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस हाइड्रेट्स की, हाइड्रेट्स आर लोकेटेड बोथ ऑन शोर एंड ऑफ शोर। हाउएवर hydrates reserves are double in offshore than onshore। There are three assessments for naturally occurring natural gas hydrates। One is water depth of 300 to 800 meter at least, depending on the local bottom water temperature are sufficient to stabilize the hydrate। Second is only a few sites contain thermogenic hydrates containing methane plus higher hydrocarbons, such as in the Gulf of Mexico and in the Caspian Sea। These hydrates tend to comprise large accumulations near the seafloor। Third is hydrates are typically found where organic carbon accumulates rapidly, mainly in the continental shelves and enclosed seas। These are biogenic hydrates, as we have discussed previously, containing methane found from bacterial methagenesis। However, such of the gas hydrates around the world is believed to have been derived as a result of the methane generated due to the microbial activity। This is the distribution of gas hydrate across the globe। You can see USA, Canada, Japan, India, Norway, Germany, UK, France, Belgium, South Korea, China, Bulgaria, Nigeria, Turkey, Egypt, Italy, New Zealand, Greece, etc. are all the countries which are actively involved in the gas hydrates research। And you can see production tests represent the places where have been successfully tested are the natural gas hydrates। And sampling studies भी हो रही हैं इसी तरह। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट सैंपल्स लिए जाते हैं और फिर चेक किया जाता है कि किस प्लेसमेंट पे कितने रिजर्व्स अवेलेबल हैं। एंड सिमिलरली अदर इज़ दी स्पेकुलेटेड एरिया रिप्रेजेंट द प्लेसेस वेयर देयर मे बी हाइड्रेट्स अंडर द करंट प्रोस्पेक्टिव टेक। इसमें कंफर्म नहीं होता, लेकिन टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है और उससे ही आइडिया होता है कि कितना सक्सेस रेट है किसी भी प्रोमिनेंट जगह पे गैस हाइड्रेट फॉर्म होने का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस हाइड्रेट्स, मैनी कंट्रीज हैव बीन वर्किंग ऑन गैस हाइड्रेट्स फॉर दी quite some time। India is one of the fastest growing economies in the world, and with this the demand for energy is also growing exponentially। This situation calls the development of a new energy resource such as coal bed, methane, gas hydrate and shale gas in the addition to the other alternate resources। India is committed to the development of this important technology and resource। Production from gas hydrates is a long-term goal, but gas hydrates are very important for this country and so on। In Sri Lanka, thermal power plants provide nearly half of the country's energy needs, and foreign exchange requirement to quench the country's demand for petroleum products among
the $2 billion per year. Recently, Sri Lanka embarked on oil exploration by awarding an exploration block of the west coast, and more acreage with petroleum potential is available offshore around the island. सो ये आप डिफरेंट कंट्रीज़ का जो पोटेंशियल है वो आप देख रहे हैं. फिगर ए में आप चेक कर रहे हैं. इट contained in the pore spaces of the coarse grained and sand, and point B indicate massive lenses and nodules in the muds, and figure C shows disseminated in the muds. Figure D shows pore spaces of fine grained marine sand, and figure E shows thin veins in the muds, and this is showing massive muds on the sea floor. So these are all are basically the distribution of gas hydrate resources, and these all will be under consideration for the discovery of gas hydrates. This is the another background of gas hydrates. I think you people should go with it on your own. And from 1995 to 2005 decade, the region has been witnessing an impressive average annual GDP growth rate of 5.6%. Countries like India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka have had a GDP growth of 6 to 9% in the recent years. In terms of energy consumption pattern, most of the SAARC member states except for India and Pakistan rely primarily on the predominant form of the commercial energy. Afghanistan and Maldives are the heavily dependent on oil. Bhutan, Nepal, Sri Lanka meet a large part of their commercial energy needs, especially electricity from hydropower. Bangladesh is heavily reliant on the natural gas. So हम देख रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी हर कंट्री की कोई नेचुरल गैस पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है, कोई हाइड्रो पावर पे, कोई कमर्शियल एनर्जी नीड्स पे, कोई जो है वो ऑयल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, एंड सो ऑन. So this is the another reason why we need the cleanliness of the renewable energy resource, and its generation is steadily increasing globally. And you can see the importance of the gas hydrate and potential of gas hydrate in the South Asia. This is about the stability of the natural gas hydrates. Natural gas hydrates are only stable within the specific range of temperature and pressure, as I have discussed above. Understanding this is the crucial to the development of natural gas hydrates, and we can produce the natural gas hydrates by the process of depressurization, thermal activation, chemical agent injection, and CO2 replacement, and solid fluidization. There have been 3 important production tests of methyl marine gas hydrates in the 21st century, and similarly for all. ये जितनी भी स्टेट्स हैं, डीप्रेशराइजेशन, थर्मल एक्टिवेशन, केमिकल एजेंट इंजेक्शन या CO2 सिक्वेस्ट्रेशन, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ. Again, this is the stability of natural gas hydrates, and you can see that north slope of Alaska, US, Germany, India, South Korea have also conducted the sampling studies on the methyl gas hydrates, and climate warming, marine ecological damage, and other hazards if methane gas hydrates are not developed carefully. तो इनकी जो एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ही केयरफुल एनवायरनमेंट में हो सकती है, अदरवाइज़ ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकते हैं फॉर दी emission process of the methane into the atmosphere, and it will result in the marine geohazards, greenhouse gas emissions, marine ecological hazards, and marine engineering hazards. And development of methyl gas hydrate reserves is controlled by the environment and the geology of the sediments at the location. 4 categories of potential hazards have been listed below. So ये हमने देखा कि क्लासिफिकेशन एंड काजेज ऑफ हैजर्ड्स ऑफ मीथेन गैस हाइड्रेट्स, और फिर इन सब हैजर्ड्स की 1 by 1 एक्सप्लेनेशन है. सब मेरीन लैंडस्लाइड जो है वो
किस तरह से इफेक्टिव है। देन यू विल सी मैरीन जियो एसिड्स किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, और मैरीन इकोलॉजिकल हैजर्ड्स किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। सो आई होप सो ये आप लोग खुद गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्मॉल स्केल पे आपको जस्ट आइडिया बता देता हूँ कि बेसिकली इसमें डिफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। 3 criteria for the potential occurrence of submarine landslide have been identified. Hydrates are widely distributed within the landslide areas. The initial position of landslide zone must be located at the face boundary of the pressure temperature field. There is a low permeability deposit under the hydrates which can maintain high pore pressure. So landsliding के ये जो disasters वगैरह भी होते हैं, incidents होते हैं, तो ये सारे जो है वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं, और ये ज़्यादातर इन्हीं गैस हाइड्रेट्स की एमिशंस की वजह से हो रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास जो अर्थक्वेक्स और अदर जियो हैजर्ड्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ मीथेन गैस हाइड्रेट रिजर्व्स में काज जियो हैजर्ड्स लाइक अर्थक्वेक, एक्टिव फॉल्टिंग, क्रैक, मड डिएपरिज्म एंड अदर ट्यूबिलिटी करंट्स। सो इसी तरह अगर आप ग्रीन हाउस गैस पे आते हैं तो जो मीथेन गैस है, आपको पता है कि ये कितने ईयर के लिए CO2 एनवेलप जो है आपके पास मीथेन एनवेलप क्रिएट होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। एनीवन आपको याद होगा कि CO2 एमिशंस में मैंने बताया था मीथेन गैस का कितना होता है टाइम पीरियड 100 years, और इसका इफेक्ट कितना होता है मीथेन गैस का? ट्वाइस होता है वाटर वेपर जी, ट्वाइस होता है वाटर वेपर से। वेरी गुड। तो ये भी रीजंस हैं कि हम गैस हाइड्रेट्स की केयरफुल एक्सट्रैक्शन चाहते हैं। सो यू कैन सी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल राइज ऑफ अर्थ एवरेज टेम्परेचर, सी टेम्परेचर इज राइजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट द हाइड्रेट स्टेबिलिटी इज अफेक्टेड and there is a release of a methane gas into the atmosphere, and it will result in the greenhouse gas emission, and again it is very dangerous for all of us from the climate change. And same is the damage for the marine ecological hazards. आप देखेंगे कि अनकंट्रोल रिलीज होगा मीथेन गैस का, और नॉर्मल कंडीशंस अगर नहीं है इसकी तो एक्सेस अमाउंट में मीथेन गैस जो है वो रिलीज़ होगी, और आपका जो CO2 जो कैप्चर्ड है आपका ओशन बेड्स में ऑन शोर एंड ऑफ शोर, वो सारा का सारा जो स्टेबल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिसमें फर्टिलिटी और उनकी प्रॉपर जो है वो वर्किंग है उनकी, और उनकी लाइफ है वो भी अफेक्टेड होती है। क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ हैजर्ड्स फ्रॉम मीथेन गैस हाइड्रेट्स। मीथेन रिलीज बाय डिकम्पोजिशन ऑफ methane gas hydrate is a natural process and it is part of the marine environment. Marine engineering hazards में क्या क्या चीज़ें आती हैं? 2 types of marine engineering hazards are listed. One is the methane gas hydrate instability induced during drilling. तो जब आप ड्रिलिंग का प्रोसेस करेंगे ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी, तभी आप कोई केमिकल इनहिबिटर इंजेक्ट करवा सकते हैं, या थर्मल स्टिमुलेशन करवा सकते हैं, या डीप्रेशराइजेशन करवा सकते हैं। तो ड्रिलिंग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, और ये जो बहुत ही केयरफुल ड्रिलिंग है इसके लिए आपको एडवांस मैकेनिकल जो है वो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, और ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है। सिमिलरली द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड ड्रिलिंग और इंस्टॉलिंग सब मेरीन स्ट्रक्चर्स इन मेरीन गैस हाइड्रेट्स एरियाज। तो जहाँ पे ये आपका गैस हाइड्रेट एग्जिस्ट करता है वहाँ पे आपका जो एक पूरा सा मेरीन स्ट्रक्चर आप इंस्टॉल करते हैं उसकी स्टेबिलिटी का भी इशू आ सकता है, क्योंकि फाउंडेशन जो इंस्टॉल की जाती है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो ये स्टेबिलिटी हैजर्ड्स हैं सारे के सारे, जो कि पाइप ड्रिल से रेलिवेंट हैं, और स्पेशली शॉक इंक्रीज इन दी मड प्रेशर भी है इसमें, जो कि अफेक्ट कर सकता है स्टेबिलिटी को। सो ये आप इस केस में देख रहे हैं कि आपका जो ड्रिलिंग है वो प्रॉपर सी लेवल से आपका आता है। सी लेवल से एक मैरीन लेयर होती है, मैरीन लेयर के बाद ये आपका गैस हाइड्रेट का रिसोर्स है,
ये इसको ड्रिल करता हुआ आता है बोर होल करते हुए, फिर फ्री गैस लेयर आती है और फिर केस बोर होल आता है। इसके डिफरेंट लेयर्स हैं और हर लेयर की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये केयरफुल ड्रिलिंग नहीं होगी तो आपकी मीथेन गैस जो है वो ब्लो आउट होना स्टार्ट हो जाएगी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन लेयर से। ये मेम्ब्रेन लेयर है तो इधर से भी मीथेन गैस रिलीज़ हो रही होगी, इधर से भी हो रही होगी। इसी तरह अगर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होगी तो आपके जो थर्मल लॉसेस हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन लेयर, इधर से भी हीट लॉस हो रहा होगा, इधर से भी हो रहा होगा, इधर से भी हो रहा होगा, तो आपका जो थर्मल स्टिमुलेशन प्रोसेस है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो हाइड्रेट जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ड्रिलिंग जो है वो सी लेवल पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली की जाती है, इसकी डिकम्पोजिशन की जाती है और प्रॉपर बोर होल इंस्टॉल किए जाते हैं, केस बोर होल इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके बाद ड्रिलिंग की जाती है ताकि इन चीज़ों की आपस में मिक्सिंग ना हो। एज द मीथेन राइजेस एंड कूल्स इट कैन रिफॉर्म एज हाइड्रेट क्रिस्टल that clog the drill pipe causing well abandonment. As drilling continues into the underlying free gas zone, formation pressure can rise causing increased release of the methane, and you can see the build up of the large amount of high pressure gas in the drill pipe which could lead to the blowout. तो ये blowout है ये अनकंट्रोल्ड होगा और फिर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम ख़राब कर सकता है। ओके सो दिस इज़ आप लोग ब्रेक कर लें 5 मिनट्स, फिर उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। टेक 5 मिनट्स ब्रेक। मेरी क्लास शुरू है। Okay, so already we have discussed the introduction. You will go through it. Hydrate formation we will start with. Because free gas or gas saturated water is less dense than either water or sediments, it will percolate upward into the region of hydrate stability. So you are well aware of the density of the gases and water. So density difference will obviously result in the release of gas whenever the gas hydrate molecule will dissociate. A minimum residual methane concentration of 10 milliliter per liter of wet sediment was necessary for hydrate formation. The upward gas motion may be sealed by relatively impermeable layer of sediment. Alternatively, permafrost or hydrate itself may act as an upper gas seal. These seals can also provide traps for free gas that has exhaled from solution, and the seals can subsequently act to provide sites for the hydrate formation from the free gas. Hydrate formation from free gas will likely initiate at a gas liquid interface, and you can go through with it. Carbon dioxide formed more hydrates from the saturated solution than did methane, and further the maximum amount of methane hydrate formation was fairly about 3% of the pore volume. ये भी आप देख सकते हैं। So you can see here the formation of a gas hydrate under the prominent condition of pressure and temperature. So this is how the gas hydrates are formed. Study of hydrate kinetics and thermodynamics had priority because the same physics can be applied to problems of hydrate formation and transmission. Therefore, to handle the unforeseen incidents and to completely understand the hydrate formation and dissociation phenomena, hydrates are simulated at the lab scale under the similar conditions. So normally जो lab scale में equipment आते हैं उनमें इतनी permeability होती है कि prominent temperature और pressure उसमें हम create कर सकें ताकि हम hydrates की formation, उसकी concentration और उसके chemical structure को भी study कर सकें. To understand the behavior of hydrates in natural gas transmission pipelines as well.
and the hydrates are also simulated in laboratory at pipeline conditions. तो ये सारे के सारे जो टेस्ट बेंच हैं ये लेबॉरेटरी स्केल पे बनाए जाते हैं ताकि बहुत ही क्लियर जो है वो एक इमेज क्रिएट हो सके कि हाइड्रेट जो आप फ्लो आउट करवा रहे हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, पाइपलाइन में उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे. गैस हाइड्रेट रिसर्च हैव टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्टडीज़. नाउ व्हाट इज़ टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्टडीज़? Time dependent studies include macroscopic, mesoscopic and molecular level measurements and modeling efforts. While typically research efforts begin with the consideration of a time dependent thermodynamic equilibrium properties due to the relative ease of the measurement. So आपको पता है कि molecular level पे किसी भी बाउंड्री लेयर को स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ज़्यादातर हम टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना को थर्मोडायनेमिकली एक्विलिब्रियम स्टेट्स पे स्टडी करते हैं ताकि हम उसकी मॉडलिंग भी इजीली परफॉर्म कर सकें और जो भी कोरिलेशन हम उसे ड्राइव करेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड वेरिएबल्स. एज एन एरिया मैच्योर्स एंड फेस एक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स बिकॉज बेटर डिफाइंड रिसर्च जनरली टर्न्स टू टाइम डिपेंडेंट मेजरमेंट सच एज काइनेटिक्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़. So this is again about the hydrate formation. Measurement and modeling of our time dependent hydrate properties is clearly far more challenging than time independent thermodynamic hydrate properties. Therefore the industry is shifting from hydrate avoidance to hydrate risk management strategies. Hydrate avoidance involves preventing hydrates from forming by avoiding the hydrate thermodynamic ability zone. So basically जब पाइपलाइन में आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी किसी भी गैस हाइड्रेट की भी तभी वो बनेगा गैस हाइड्रेट पाइपलाइन में, अदरवाइज़ वो नहीं बनेगा. तो टाइम इंडिपेंडेंट स्टडी हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमें ये पता चल सकता है कि कौन कौन से वो रिक्वायर्ड एस्पेक्ट्स हैं जिनको अगर हम पाइपलाइन में क्रिएट कर दें तो गैस हाइड्रेट की फॉर्मेशन वहाँ नहीं होगी मीथेन की प्रेजेंस में या किसी भी लो हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस में. Hydrate risk management, however, involves the use of the transient methods to delay the hydrate formation or prevent hydrate particles from agglomerating, thus preventing the pipeline blockages. ये जो रिस्क मैनेजमेंट है इसमें हम इनहिबिटर्स, केमिकल इनहिबिटर्स वगैरह इंजेक्ट करवाते हैं जैसे इथाइल ग्लिकोल में बता चुका हूँ. तो उससे ये होता है कि उसके इक्विलिब्रियम फेस को हम शिफ्ट कर देते हैं तो एग्लोमरेशन नहीं होती गैस हाइड्रेट्स की और पाइपलाइन ब्लॉकेज नहीं होती उसमें. अ फर्दर मोटिवेशन फॉर performing time dependent hydrate studies is the increasing interest in the assessment and production of energy from natural resources in permafrost and oceanic deposits. So जब हम इस लेवल की तरफ मूव करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें टाइम डिपेंडेंट स्टडी भी करना पड़ेगी. हाइड्रेट फॉर्मेशन इज़ अ सब्सटेंशियल प्रॉब्लम इन डीप वाटर प्रोडक्शन एंड फ्लो लाइन्स, pipelines that transport condensed hydrocarbons phases such as gas condensate or crude oil have limited possibilities for removing hydrates once the plugs have formed. So इनको रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. क्रूड ऑयल पाइप्स में भी ये कंडेंसेट की फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो टाइम डिपेंडेंट स्टडी जब तक नहीं होगी तो हम किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ नहीं आ सकते. हाइड्रेट फॉर्मेशन मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स. Now how to find the gas hydrate and what are the methods and equipments? In gas hydrate lab, following methods are very important for the formation and dissociation of gas hydrate. Number one is isochloric pressure search method. It is also known as T-cycle method. Okay, T-cycle method. आइसोकोरिक प्रेशर क्या होता है? आइसोबारिक प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर जो होता है आपके पास वो आइसोबारिक होता है, जबकि जो आइसोकोरिक होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है. यह आप थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी कर चुके हैं. सो कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ आप प्रेशर सर्च करते हैं और टी साइकिल मेथड को यूज़ करते हुए तो प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करते हैं कि टेम्परेचर कम करने से या प्रेशर ज़्यादा करने से गैस हाइड्रेट की स्टेबिलिटी किस तरह से अफेक्ट हो रही है और उससे आप कंक्लूड करते हैं उस हाइड्रेट की स्टेबिलिटी. सिमिलरली कांस्टेंट कूलिंग मेथड्स आर आल्सो अवेलेबल, टेम्परेचर रैम्पिंग मेथड्स आर आल्सो अवेलेबल एंड काइंड ऑफ अगर हम इक्विपमेंट की बात करें या डिफरेंट रिएक्टर्स की बात करें तो हमारे पास ऑटोक्लेव प्रेशर सेल है, मिनी फ्लो लूप है,
रॉकवेल सेल है, और सेफायर हाइड्रेट रिएक्टर भी अवेलेबल है, और डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर भी अवेलेबल है जिसमें हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हाइड्रेट फेस बाउंड्री डिटरमिन्स द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस अंडर विच द हाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड एंड डिसोसिएट, फर्दर एक्सप्लेन्स द कंडीशंस ऑफ द हाइड्रेट स्टेबिलिटी। Now, hydrate formation methods and equipments. Hydrate formation and dissociation is shown in the coming figure. We will see. In that case, the volume is constant. I have already explained the isochoric process. That volume will be constant, and temperature is changing during the cycle. An agitated autoclave cell, that is a 300 centimeter cube housing a side glass window, contains of water at 150 centimeter cube that is pressurized with methane gas to the upper rightmost temperature and pressure. So within the autoclave cell having the volume of 300 centimeter cube, we will be put in the 150 centimeter cube of water, and also we will inject methane gas, and we will provide the suitable temperature and pressure for the formation of gas hydrate. And once the gas hydrate is formed, then we will study its properties under different cyclic conditions. As the cell temperature is lowered, the pressure decreases. आपको पता है अगर प्रेशर डिक्रीज हो तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हो तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, प्रिंसिपली ड्यू टू द गैस concentration as well as the increased gas solubility upon cooling at constant volume. Neither gas nor water is added to the system during the experiment. सो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रेशर डिक्रीज़ करें तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा, ये आप सबको पता है। तो आपको पता है कि जब भी ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, नीदर गैस नॉर वाटर इज़ एडेड टू द सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। जब आप एक दफ़ा अपने वेरिएबल्स को पुट करवा देते हैं ऑटोक्लेव में, तो फिर आप उनको जो है ना वो आइसोलेट कर देते हैं, फिर आप मज़ीद उसमें ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कोई भी गैस या इनहिबिटर या वाटर मॉलिक्यूल इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो दिस इज़ द लैब इक्विपमेंट, यू कैन सी दिस इज़ योर ऑटोक्लेव एंड यू कैन सी डिफरेंट सिलेंडर्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द डिफरेंट वैक्यूम एनवायरनमेंट और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आपको जितना भी रिक्वायर्ड सूटेबल प्रेशर है वो आप कंप्रेसर्स के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, that is possible. And similarly by using the heaters and specified heaters you can increase or decrease the temperature. और obviously आपको temperature जो है वो 2 to 15 डिग्री सी चाहिए for the formation of gas hydrate. So that means आपको एक proper cold environment चाहिए होगा और उसको proper insulate करेंगे आप, ताकि उसमें जो है heat enter ना हो सके, क्योंकि gas hydrate तभी उसमें form होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो मस्ट है इसमें। तो इस तरह के लेबॉरेटरी स्केल इक्विपमेंट होते हैं, इसमें डिफरेंट गैस और डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को एंटर करके गैस हाइड्रेट की फॉर्मेशन करवाई जाती है पहले, और फिर उसके डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। और इस पे भी हायर स्केल पे जो है वो रिसर्च हो रही है, MSPADs हो रहे हैं, स्पेशली जो पेट्रोकेमिकल में रिसर्च करते हैं या जियोलॉजिकल फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। ये टी साइकिल मेथड आप देख रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस पे आपके पास टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे प्रेशर है। टेम्परेचर आप देख रहे हैं ये केल्विन में अवेलेबल है आपके पास, और प्रेशर जो है मेगापास्कल में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ए है आपके पास, जिसमें गैस आप इंसर्ट करवा रहे हैं, इंजेक्ट करवा रहे हैं ऑटोक्लेव में, और फिर उसके बाद जो है टेम्परेचर आप डिक्रीज़ कर रहे हैं। 303 टेम्परेचर था इनिशियल, और फिर आप पार्टिकुलरली इसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम भी है तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा। तो पॉइंट बी पे बेसिकली आप कूलिंग करवा के 274 तक तकरीबन आ चुके हैं केल्विन तक। 274 केल्विन मीन्स राउंड अबाउट 1 डिग्री सी 2 डिग्री सी। और फर्दर फिर आप क्या करते हैं, डीप्रेशराइजेशन का प्रोसेस करते हैं पॉइंट बी टू सी, क्योंकि पॉइंट बी पे तो आपका हाइड्रेट विल बिगिन टू फॉर्म और न्यूक्लिएशन इसमें स्टार्ट हो जाती है, गैस हाइड्रेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है पॉइंट बी पे। अब जैसे आप डीप्रेशराइजेशन करेंगे और अगेन उसमें डीप्रेशराइजेशन करेंगे तो गैस हाइड्रेट की जो स्टेबिलिटी है वो, पहले हमने गैस हाइड्रेट बनाया है पॉइंट बी पे,
जब वो बन गया है, स्टेबल जोन में आ गया है, फिर हम उसको अब डिसोसिएट करेंगे। डिसोसिएट कैसे करेंगे? अपने मर्ज़ी के नॉन प्रेशर पे। फॉर एग्जांपल, आप में से अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि इस तरह से कि 4.4 मेगापास्कल तक मैं प्रेशर को ड्रॉप करता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ कि ये गैस हाइड्रेट किस टेम्परेचर पे अनस्टेबल होगा। तो ये देखें, आपने पॉइंट सी तक जो है वो प्रेशर को ड्रॉप किया और अब आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट बाय पॉइंट जो है केल्विन्स में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे और यू विल सी अ पॉइंट विल कम व्हेन गैस हाइड्रेट विल स्टार्ट टू डिसोसिएट, and this is the point actually where gas hydrate will start, and this is the point of dissociation, and again it will be converted into the hydrate equilibrium point, जहाँ पे वो complete अपनी एक्चुअल पोजीशन में रिस्टोर हो जाएगा। तो ये एक टी साइकिल है, इसमें आप कांस्टेंट वॉल्यूम को रखते हुए टेम्परेचर और प्रेशर को स्टडी करते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज फ्रॉम टी साइकिल मेथड? Yes, please. Any question? No. हाँ जी, आप ज़रा इस ग्राफ को एक्सप्लेन करें, मैंने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। टी साइकिल क्या होता है? शाबाश। जी हमाद, आप बताएं। हमजा जावेद। दानिश। सर हमारे पास एक स्टेबल रीजन होता है और एक अनस्टेबल रीजन होता है और उसके बीच में एक लाइन है हमारे पास। जी सर अब अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स और गैस मॉलिक्यूल्स को आपस में से सेपरेट करना है तो हमें अनस्टेबल रीजन में जाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर्स हैं और कुछ प्रेशर्स हैं। तो जब हम वो टेम्परेचर्स और प्रेशर्स को अचीव कर लेंगे अनस्टेबल रीजन में रहते हुए, तो हमारी जो गैस है वो ऑटोमेटिकली वाटर से सेपरेट हो जाएगी, और अगर हम स्टेबल करना चाहते हैं तो हम स्टेबल रीजन की तरफ चले जाएं। वेरी गुड। सो ये लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट हमें हेल्प क्या करेगा? कोई भी गैस हाइड्रेट जो कि हमने किसी साइट से डिस्कवर किया है, हम उसको लैब स्केल पे स्टडी कर सकते हैं कि किन टेम्परेचर प्रेशर्स पे ये फॉर्म हुआ होगा। ओके, और फिर हम चेक कर सकते हैं मज़ीद कि किन टेम्परेचर और प्रेशर्स पे हम इसको डिसोसिएट करवा सकते हैं कमर्शियल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन हम इसको चेक कर सकते हैं, और ऑब्वियसली ये लेबॉर्ट्री स्केल पे ही पॉसिबल है, तब हम इसको कमर्शियल स्केल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम सक्सेसफुल रेट अचीव कर लेते हैं लेबॉर्ट्री स्केल पे। सो दिस इज़ द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन एज आई हैव एक्सप्लेन्ड। द मेटास्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम प्रिवेंट्स हाइड्रेट फॉर्मिंग इमीडिएट एट पॉइंट डी। सो दिस इज योर पॉइंट डी एंड यू कैन सी, and this is your point D where we can see this is D point, and the metastability of the system prevents hydrate forming immediately at point D at the hydrate equilibrium temperature and pressure. Instead of system pressure continues to decrease linearly with the temperature for a number of hours. So ये बेसिकली इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, हम मेटास्टेबल पॉइंट पे आए हैं, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं लीनियरली टेम्परेचर प्रेशर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं for the number of hours without hydrate formation occurring. A to B is the induction point. At point B, hydrates begin to form. So you can see here at point B, the hydrate will begin to form. I have already explained. Point B is the beginning of formation of gas hydrate. The pressure drops rapidly from point C about 1 megapascal or 10 atm in 0.5 hours. B to C is the catastrophic growth period. तो ये B2C जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये कैटास्ट्रॉफिक ग्रोथ पीरियड है आपके पास। हाइड्रेट डिसोसिएशन बिगिंस व्हेन द सेल इज हीटेड फ्रॉम पॉइंट C so that the system pressure increases at first slowly and then sharply along the steep dissociation line. तो ये आप देख लें, पहले इस आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है, फिर शार्प प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है अगेन और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ है। Finally at point D, the hydrates are completely dissociated and as confirmed visually through the side glass. The subcooling of a system without hydrate formation leads to an area between the hydrate formation temperature and the hydrate's dissociation temperature called metastable region.
The subcooling of a system without hydrate formation leads to an area between the hydrate formation temperature and hydrate dissociation temperature called the metastable region where the hydrate is not stable. So ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वो कम्प्लीटली ना फॉर्म होता है और ना ही कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, वो आपका मेटास्टेबल रीजन होता है. हाइड्रेट फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन, द हाइड्रेट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज गिवन एट पॉइंट डी. ये डी जो आपका पॉइंट है ये बेसिकली मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है. इंस्टेड ऑफ द सिस्टम प्रेशर कंटिन्यूज टू डिक्रीज, ये यूजुअली 1 to 2 days of experimentation effort are required to traverse the loop in order to avoid obtaining an erroneous dissociation temperature and pressure. The dissociation part of the loop must be performed at a sufficient slow heating rate. The temperature difference between the temperature at point D, the temperature difference between the temperature at point D to that at the point B is called subcooling. So ये आपका पॉइंट B है और ये आपका पॉइंट डी है. और अगर हम इसको प्लॉट करें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आएँ तो ये आपका डी पॉइंट टेम्परेचर था और ये आपका बी पॉइंट टेम्परेचर होगा. तो अबाउट ये बनता है 295 माइनस 275. सो ये जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ये क्या बता रहा है आपको? ये आपको बता रहा है सब कूलिंग टेम्परेचर. ओके, and subcooling temperature can be calculated from the T equilibrium metastable point of D minus temperature of B point. Heat is the flow of energy from high temperature to the low temperature. When these temperatures balance out, heat stops flowing and then the system is said to be in thermal equilibrium. अब आप देख रहे हैं कि thermal equilibrium इनमें अचीव कैसे होता है. When the heat is flow of energy from high temperature to a low temperature, when the temperature balance out, heat stops flowing and then the system is said to be in thermal equilibrium. So जब दोनों का टेम्परेचर सेम अचीव हो जाएगा, थर्मल में आप स्टडी करते रहे हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम इसमें अचीव हो जाती है. तो ये ग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये बेटा आपको करना आनी चाहिए. हर पॉइंट भी इसमें एक्सप्लेन कर दिया हमने. पॉइंट बी भी एक्सप्लेन किया है, डी भी एक्सप्लेन किया है, मेटास्टेबल पॉइंट भी एक्सप्लेन किया है, सब कूलिंग जो थी वो भी हमने एक्सप्लेन कर दी. इसमें कहाँ कहाँ जो आपका है वो गैस हाइड्रेट फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे आपका गैस हाइड्रेट डिसोसिएशन हो रहा है. नाउ वी विल सी हाइड्रेट न्यूक्लिएशन. हाइड्रेट न्यूक्लिएशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ वाटर एंड गैस ग्रो एंड डिस्पर्स इन एन अटेम्प्ट टू अचीव द क्रिटिकल साइज ऑफ द कंटिन्यूड ग्रोथ. सो आप देख रहे हैं कि पूरा क्रिस्टल एकदम से नहीं बनता. पहले स्मॉल जो क्लस्टर्स होते हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लिएट होना स्टार्ट होते हैं. फिर ये क्लस्टर्स जो होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एक दूसरे के साथ कंबाइन होके आपका जो फाइनल जो आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है इनसे. ठीक है. हाइड्रेट न्यूक्लिएशन की ये मीन्स के प्रॉपर्टी है कि पहले न्यूक्लिएट होना. न्यूक्लिएट मीन्स के स्मॉल एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलके आपका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे. It is the process during which small water and gas molecules grow and disperse in an attempt to achieve the critical size. For an agitated system operated at constant pressure, hydrate nucleation and growth is presented. ये हम पीछे देख चुके हैं. An autoclave cell of 300 cm³ containing volume and 150 cm³ of water is pressurized with the gas and brought to the hydrate formation at P and T conditions. The gas is added from the reservoir to maintain the constant pressure as hydrates form with time. इसका क्या मीनिंग हुआ? Anyone? जी anyone? The gas is added from a reservoir to maintain constant pressure as hydrate form with time. The rate of the consumption of gas is the hydrate formation rate that can be controlled by kinetics or heat or mass transfer. So basically ये कह रहे हैं कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट हम अचीव कर लेते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान कि जब हम जितनी गैस रिजर्वायर से ऐड करेंगे आपके ऑटोक्लेव सेल में, उसी रेट के साथ आपका हाइड्रेट फॉर्मेशन भी हो रहा होगा. सो वो कांस्टेंट प्रेशर हमने अचीव करना होता है और वो टेम्परेचर हमने अचीव करना होता है
जहाँ पे आपका फ्लो काइनेटिक्स हमारा जो है वो कंटिन्यूस हो जाए. So that means the gas is added from a reservoir to maintain the constant pressure as hydrate form with time. The rate of consumption of gas is the hydrate formation rate that can be controlled by kinetics or heat or mass transfer. So ये हम लोगों ने पहले इसको जो है वो डिस्कस किया है. आप लोग 5 मिनट्स की ब्रेक लें, फिर उसके बाद लेक्चर को हम जो है वो ख़त्म करते हैं. 5 मिनट्स की ब्रेक ले लें. ओके. Now starting from the basic fundamental concepts, we will look for the hydrate nucleation concept, and we can see here the introduction time is marked as 1. न्यूक्लिएशन जब आपको स्टार्ट होती है तो वो डिफरेंट फेसेस में होती है. आप एज्यूम कर लें कि 4 फेज में न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. नंबर 1 इज़ इंडक्शन टाइम, नंबर 2 इज़ इनिशियल रेट ऑफ कंजम्पशन, नंबर 3 इज़ अ कांस्टेंट कर्व वेयर यू कैन सी अ गैस कंजम्पशन एट टाइम t is occurring and rate of consumption at time t is, and 4th point is the final rate of consumption. So the induction time is marked as 1, and it includes the time taken for the crystal nuclei to form, which are not visible to a macroscopic probes. So ये वो टाइम होता है किसी भी गैस हाइड्रेट एकदम से नहीं बनता. पहले स्मॉल चाबी दे यार, जल्दी कर चाबी दे. पहले स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपके जो हैं वो बनते हैं, और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से न्यूक्लिएट होते हैं. तो पॉइंट 1 बेसिकली इंडक्शन टाइम, वो इंडक्शन टाइम है आपके पास कि इतने स्मॉल क्रिस्टल न्यूक्लियाई आपके फॉर्म होते हैं कि वो विजिबल आई से या मैक्रोस्कोपिक प्रोब से आप उनको देख नहीं सकते. दे आर नॉट विजिबल विद द मैक्रोस्कोपिक प्रोब्स. दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल न्यूक्लियाई एंड दे आर formed at induction time 1. Now, the induction time is defined as the time elapsed under the appearance of a detectable volume of a hydrate phase, or equivalently until the consumption of the detectable number of moles of hydrate former gas. The induction time is often also termed as the hydrate nucleation or lag time. जी, so जब तक ये जो आपका हाइड्रेट है ये अब न्यूक्लिएट होना स्टार्ट हो चुका है. अब जितना टाइम ये लेगा जब तक कि ये मिनिमम अमाउंट में जो फर्स्ट विजिबिलिटी अपनी शो करेगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, माइक्रोस्कोपिक इक्विपमेंट में, तो फर्स्ट विजिबिलिटी तक जो टाइम लेगा ये जो टाइम होता है इसे हम बोलते हैं इंडक्शन टाइम. इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम elapsed until the appearance of a detectable volume of a hydrate phase. So जब तक एक डिटेक्टेबल वॉल्यूम नहीं आ जाता आपके गैस हाइड्रेट का, तो तब तक का जो टाइम होता है उस वो जो टाइम लैग होता है, टाइम स्पैन होता है, उसे हम आपका इंडक्शन टाइम बोलते हैं. एंड इट इज़ आल्सो इक्विवेलेंटली द कंजम्पशन ऑफ द डिटेक्टेबल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ हाइड्रेट फॉर्मर गैस. तो तब तक हम नोट क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम टाइम नोट करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी नोट कर रहे होते हैं कि कितने मोल्स ऑफ गैस इसने कंज्यूम किए जब तक कि एक विजिबल गैस हाइड्रेट का न्यूक्लिएट फॉर्म नहीं हो जाता. और इस चीज़ को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं. एंड दैट इंडक्शन टाइम इज ऑफन आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट न्यूक्लिएशन, ओके, और लैग टाइम. द इंडक्शन और लैग टाइम इज द टाइम टेकन फॉर हाइड्रेट टू डिटेक्ट मैक्रोस्कोपिकली. Often nucleation and onset of growth have occurred, whereas nucleation occurs on too small a size scale to be detected. Therefore, the term nucleation time will not be used in this context. Instead, the term induction time or induction period will be used. Okay. So ये इतने स्मॉल साइज में ये फॉर्म हो जाते हैं कि ये टर्म न्यूक्लिएशन के लिए हम द टर्म न्यूक्लिएशन टाइम विल नॉट बी यूज इन द कॉन्टेक्स्ट. वो कह रहा है कि इंडक्शन टाइम हम इसे बोलते हैं कि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में हमें मिल जाता है, इसलिए हम इसे न्यूक्लिएशन टाइम नहीं बोल रहे, क्योंकि न्यूक्लिएशन में तो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इवन वो विजिबल भी नहीं होते. लेकिन हमने इंडक्शन टाइम इसको इसलिए कहना है कि जब तक वो विजिबल नहीं हो जाता फर्स्ट इक्विपमेंट आपका जो है, तब तक वो जितना भी टाइम लेगा उसे हम इंडक्शन टाइम बोलेंगे. दैन इंडक्शन टाइम इज़ मोस्ट लाइकली टू बी डोमिनेटेड बाय द न्यूक्लिएशन पीरियड.
but also includes growth up to the point at which hydrates are first detected. Okay, so nucleation period plus induction period until they are visible. During the induction period, the temperature and pressure conditions are within the hydrate stable region, so that during the first stage of the hydrate formation and nucleation stage, you will see the temperature and pressure conditions are always in the equilibrium state of the gas hydrate. और जब तक गैस हाइड्रेट की जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती हैं वो अचीव नहीं होती, तब तक ये न्यूक्लिएशन स्टेज भी आपको अचीव नहीं होगा. हाउएवर हाइड्रेट्स डज नॉट फॉर्म विद इन दिस पीरियड बिकॉज ऑफ मेटास्टेबिलिटी, क्योंकि ये मेटास्टेबल रीजन है, इसमें आपका प्री मैच्योर प्रोसेस है, इसमें कंप्लीट आपका स्टेबल हाइड्रेट नहीं बना अभी, इसलिए हम हाइड्रेट फॉर्मेशन का नाम इसको नहीं दे सकते. ये एक मेटास्टेबिलिटी स्टेज है. बट इन मेटास्टेबिलिटी द एबिलिटी ऑफ अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो जब भी आप किसी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को एक स्पेसिफिक वेरिएबल एनवायरनमेंट देते हैं इस तरह से कि वो लंबे अरसे के लिए स्टेबल रह सके, तो ये होता है बेसिकली आपका मेटास्टेबल टाइम होता है, मेटास्टेबल जोन होता है, कि एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ज़्यादा देर के लिए जो है वो परसिस्ट कर सके. ओके सर, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया. बस मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ लेक्चर को. सर क्लास हो गई दूसरी स्टार्ट. आपका जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में करना सर. नहीं बस ये खत्म हो चुका है, मैंने ये अभी ये एक्सप्रेशन हो गया सर, और उसके बाद जो है वो आपको मैं एंड पे जो है ना बस खत्म हो चुका है. हाइड्रेट न्यूक्लिएशन का स्टेप 2 देखें, इसमें क्या हो रहा है, कौन बताएगा. इनिशियल रेट ऑफ कंजम्पशन हो रही है इसमें. It is where very rapid hydrate growth is occur, and during the growth period gas is being concentrated in the hydrate cages. Hydrated gas molecules are more densely packed than those in the vapor form. So this is a stage where the number of the gas molecules are trapped inside the water cage molecules, और इसमें बहुत ही इनिशियल स्टेज से इसका जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होता है स्टेप 2 का. और स्टेप 3 और जो 4 है इसमें देखें, एज द वाटर इज कंज्यूम्ड बाय द हाइड्रेट फॉर्मेशन द स्लोप ऑफ द गैस कंजम्पशन रेस इज इवेंचुअली डिक्रीज विद टाइम. अब क्योंकि स्टेप 3 और 4 में आपका वाटर भी जो है वो गैस हाइड्रेट फॉर्मेशन में जो है वो अपना पार्ट प्ले करना स्टार्ट कर देता है, तो गैस इतना ज़्यादा हायर रेट पे जो है वो कंज्यूम नहीं होती स्टेप 3 और स्टेप 4 में, क्योंकि इसमें प्रॉपर गैस हाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है. सो दीज आर दी सम एम्पिरिकली ड्राइव्ड फार्मूलाज from 1983 to 2005 that are used for the different driving forces that are used for the nucleation, and these driving forces empirical formulas are here. You can get details of the formulas from the reference books as I have mentioned in the lecture, and these are some formulas, empirically derived formulas. Induction time, how to find the induction time, how to find the formation time, how to find the gas consumption, how to find the compressibility factor, and derivation of all of these formulas involve the thermodynamic concepts and the empirical theory of the gas hydrates, and then only you can drive these formulas, and they can directly use for the finding the induction time, formation rate, gas consumption कितनी हुई है, compressibility factor कितना है इसका, relative inhibition strength कितनी है इसकी, and so on. और ये हाइड्रेट न्यूक्लिएशन अगेन इसको जो है आप खुद स्टडी कर लेना इस कॉन्सेप्ट को, ये मैं आप लोगों को लीव कर देता हूँ. सुपर सैचुरेशन क्या होती है और ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं, क्रिस्टलाइजेशन की क्या कॉन्सेप्ट्स है उसमें, और क्रिस्टलाइट किस तरह से फॉर्म होते हैं, ये आप देखेंगे इसमें. और इसी तरह जो है वो लेबाइल क्लस्टर न्यूक्लिएशन हाइपोथेसिस, ये डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं जो कि न्यूक्लिएशन फॉर्मेशन में उनमें प्रोवाइड किए हैं, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा. और ये इनकी एप्लीकेशन है गैस हाइड्रेट्स की, जिसमें सी वाटर डिसैलिनेशन हम देख रहे हैं, और इसके अलावा CO2 कैप्चरिंग हम देख रहे हैं, रेफ्रिजरेशन देख रहे हैं, गैस स्टोरेज देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, और सी वाटर डिसैलिनेशन भी देख रहे हैं. और इनकी एप्लीकेशंस में अगर हम देखें, सो रिड्यूसेस दी हाइड्रेट फॉर्मेशन प्रेशर एंड इट आल्सो इंक्रीजेस दी हाइड्रेट फॉर्मेशन टेम्परेचर. सो गैस हाइड्रेट प्रोमोटर्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास, जो कि थर्मोडायनेमिक भी होते हैं और काइनेटिक्स डिपेंडेंट भी होते हैं. जो काइनेटिक डिपेंडेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, और कुछ थर्मोडायनेमिक डिपेंडेंट की हैं.
तो जो थर्मोडायनेमिक गैस हाइड्रेट हैं आपके पास प्रोमोटर्स हैं, ये ज़्यादातर क्या करते हैं आपके पास, इट रिड्यूस दी हाइड्रेट फॉर्मेशन प्रेशर, कि जिस प्रेशर पे उन्होंने फॉर्म होना था वो प्रेशर रिड्यूस करते हैं और जो हाइड्रेट टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो ये इनहिबिटर भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं और इनकी जो एप्लीकेशन है अगेन हाइड्रोजन स्टोरेज, गैस ट्रांसपोर्टेशन, डिसैलिनेशन, CO2 कैप्चरिंग, रेफ्रिजरेशन और फ्लो एश्योरेंस में आप कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट गैस हाइड्रेट्स। और फ्लो एश्योरेंस में ये मैं OGDCL के इशूज़ आपको बता चुका हूँ। पाइपलाइन में जो है वो गैस हाइड्रेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जब भी किसी फ्यूल में मीथेन या इस तरह की आप जो है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं, फ्यूल्स को अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस हाइड्रेट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो पूरी की पूरी पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती हैं। स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स जो एकुमुलेशन है, एग्लोमरेशन है, वो पूरी की पूरी लाइन को ब्लॉक कर देती है और इसको जो है वो आप एक ही तरीके से केमिकल इनिबलेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेथड्स टू प्रिवेंट हाइड्रेट फॉर्मेशन आर थर्मल इंसुलेशन, डीप्रेशराइजेशन, वाटर रिमूवल और केमिकल इंजेक्शन। ज़्यादातर केमिकल इंजेक्शन करते हैं लेकिन डीप्रेशराइजेशन भी एक अच्छा मेथड है, थर्मल इंसुलेशन भी अच्छा मेथड है और वाटर रिमूवल भी हम कर सकते हैं। जब वाटर होगा ही नहीं उसमें तो हाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। और इसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, पूरे के पूरे आपके जो पाइप्स होते हैं वो क्रैक्ड हो जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं, वो फ्लो रेट कम हो जाता है उनमें, आपके प्लांट की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है और एनुअल मेंटेनेंस इनकी ज़रूरी होती है उसमें। तो कैसे करेंगे, अगेन डीप्रेशराइजेशन करके, केमिकल इंजेक्ट्स करवा के, और जो चोक पाइप आपके होते हैं उनको जो हम वो अगेन से क्लीन अप कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा खुद, बहुत ही एक्सप्लेन्ड जो है इसमें थर्मोडायनेमिक इनहिबिटर्स को भी मैंने किया हुआ है और आपके और भी जो हैं वो काइनेटिक इनहिबिटर्स हैं उनको भी किया हुआ है। तो किस तरह से जो है वो ये कंट्रोल करते हैं एनवायरनमेंट को। तो अभी तक मैं आपको 2 असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, आपने सबमिट भी करवा दिए हैं, जिन्होंने करवा दिया उनकी मार्किंग हो जाएगी। दिस इज़ जो असाइनमेंट नंबर 3। और असाइनमेंट नंबर 3 में आपको क्या करना होगा कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा। सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन ब्रीफली न्यूक्लिएशन एट द इंटरफेस हाइपोथेसिस। न्यूक्लिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने वर्ड्स में यूजिंग द हेल्प ऑफ द रिसर्च पेपर्स। ठीक है, you will have to explain briefly the nucleation at the interface hypothesis, explain local structuring nucleation hypothesis, जो कि एंड पे आपने देखा था लोकल स्ट्रक्चरिंग न्यूक्लिएशन का एक टॉपिक आया था, क्योंकि टाइम इतना नहीं था एक्सप्लेन कर सकते। एंड यू विल आल्सो हैव टू एक्सप्लेन द ड्राइविंग फोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रेट न्यूक्लिएशन। सो दीज आर द 3 टॉपिक्स, nucleation at the interface hypothesis and structuring nucleating hypothesis and driving forces that are required for the hydrate nucleation। ये 3 टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 1 पे आपने 300 वर्ड्स को लिखना है, टॉपिक 2 पे भी 300 वर्ड्स को और टॉपिक 3 पे 100 वर्ड्स को। ये आपने खुद टाइप करने हैं और किसी रिसर्च पेपर का रेफरेंस होना चाहिए। एटलीस्ट हर टॉपिक में 2 रिसर्च पेपर का आपने रेफरेंस देना है और 300 वर्ड्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, जो जो सपोर्टिंग ब्लॉक डायग्राम्स हैं या जो जो आप कर सकते हैं उसमें आप करेंगे और अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है। और एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट आपने रेफरेंसेस को कोड करना है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 3 की हेडिंग होगी, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट पुट करेंगे और उसके नीचे उसका आंसर आएगा और रेफरेंसेस आएंगे, फिर स्टेटमेंट 2 आएगी, उसके रेफरेंसेस आएंगे। रेफरेंसेस को साथ साथ आपने साइड करना है और टोटल जो असाइनमेंट में रेफरेंसेस होंगे वो 5 होंगे मिनिमम। ओके, और ये जो असाइनमेंट सबमिशन है ये 5 जून है आपकी। 5 जून के बाद ये असाइनमेंट मैं चेक नहीं करूँगा आपकी, और ये आप जो है वो ग्रुप में मुझे सबमिट करवाएंगे। ग्रुप टास्क है आपका, ग्रुप में आप सबमिट करवाएंगे और ग्रुप में ही आपकी मार्किंग होगी। ओके, हैव यू एनी क्वेश्चन? नो सर।